Thank you, our Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हो that you've given us grace to come once again in your presence. ये आपने हमें अनुग्रह बख्शा है कि एक बार फिर से आपकी हुजूरी में हम आ सके। Under your shed blood we come. आपके बहाए हुए खून के नीचे हम आते हैं। Bring ourselves, our wives, our children under your blood. अपने आप को, बीवियों को, बच्चों को प्रभु आपके लहू के नीचे लाते हैं। This whole church, Father. इस संपूर्ण कलीसिया को भी प्रभु We pray, Father, that you come and break thy word and bread of life for us आपसे दुआ करते हैं कि आप आएं और अपने जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें and feed thy lambs और अपने मेमनों को आप खिलाएं, as we submit ourselves into your hands of grace. जबकि आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे अपने आप को हम सौंपते हैं। In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। Let's open our Bibles to the book of Luke, chapter 24. आइए अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे, लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय निकालेंगे। आमीन। And we're going to just read from verse 25 to 35. और 25वीं आयत से हम 35वीं आयत तक पढ़ेंगे। Then he said unto them, O fools, and slow of heart, to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. And they drew nigh unto the village whither they went, and he made as though he would have gone further. But they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening, आमीन। and the day is fast spent. And he went in to tarry with them. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it and brake and gave to them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? And they rose up the same hour and returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, हालेलुया। and them that were with them, saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon. And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread. आमीन। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से उनके अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। We thank you, Abba Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for thy word. आपके वचन के लिए। Now open it for us अब कृपया इसको हमारे लिए खोल दें and feed thy lambs. और अपने मेमनों को खिलाएं। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। You can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। It's once again a wonderful day the Lord has given to you and I, that we can come in his presence. एक बहुत ही अद्भुत दिन है, खुदावंद ने एक बार फिर से आपको और मुझे दिया कि हम उनकी मौजूदगी में आ सकें। And we are very happy for being in the house of the Lord. और खुदावंद के भवन में आकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं।
The Bible says, where 2 or 3 are gathered in my name, बाइबल में यूं लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, there I am in the midst of them. वहां मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। Fellowship. संगति। And when we have fellowship under that blood, और जब उस खून के नीचे हम संगति करते हैं, He comes and blesses us. और आते हैं और हमें बरकत देते हैं। We thank God for that funeral we had today morning और खुदा का धन्यवाद करते हैं उस फ्यूनरल के लिए जो आज सुबह हुई, of our precious sister Sushila Reddy, हमारी अजीज बहन सुशीला रेड्डी का, who went on to be with the Lord. जो प्रभु के पास चली गई हैं। But we really thank God, it was all wonderful. और हम जानते हैं ये सब कुछ बहुत अद्भुत हुआ है, And by His grace, that service went on very fine. और खुदावंद के अनुग्रह से वो सभा बहुत बढ़िया रही। And we understood that we are eternal. और हमने इस बात को समझा कि हम अनंत हैं, And eternal has no end. और अनंत का कोई खात्मा नहीं है। So blessed be the name of the Lord. सो खुदावंद का नाम जलाल पाए, And may God give you and I grace to understand His word. और काश खुदावंद आपको और मुझे अनुग्रह दे ताकि हम उनके कलाम को समझ सकें, That what God has for us in this hour. ये खुदावंद के पास इस घड़ी में हमारे लिए क्या है। There has been times when God comes and there is like a revival breaks forth among the people. और ऐसे समय आते हैं जब खुदावंद हमारे बीच में आते हैं और एक बेदारी सी फूट निकलती है। I'm talking about the ages. मैं युगों की बात कर रहा हूं कि जब युगों में खुदावंद आए और बेदारी आई, And then finally you find that the people start cooling off. और हम पाते हैं उसके बाद फिर लोग ठंडे पड़ने लगे। Then God does something to revive them again. तब खुदावंद फिर से कुछ करते हैं ताकि उनके फिर से बेदार करें। And now we know that someday there's going to be a last revival. और हम जानते हैं कोई रोज ऐसा है जिसमें कि एक आखिरी बेदारी होगी, When the bride would be literally changed and go back home. जबकि दुल्हन वास्तविकता में बिल्कुल बदल जाएगी और यहां से घर चली जाएगी। Then these kinds of meetings will be over. तब इस किस्म की सभाएं समाप्त हो जाएंगी, It'll give way to a bigger meeting और ये एक मार्ग बनाएगा एक बड़ी सभा के लिए, where we will be constantly worshiping Him जहां हम लगातार उनकी उपासना करेंगे and be in the presence of the Lord. और खुदावंद की मौजूदगी में रहेंगे। So blessed be the name of the Lord. सो खुदावंद का नाम जलाल पाए। It's been a wonderful day and time, बहुत ही अद्भुत दिन रहा है और समय रहा है, and we are worshiping Him under His blood. और उनके लहू के नीचे हम उनकी उपासना कर रहे हैं। And we know that under that blood we have our redemption, और हम जानते हैं उस खून के नीचे हमारा छुटकारा है, our healing, our everything. हमारी चंगाई, हमारी सब कुछ। Now, how many believe that He is the same tonight? कितने ये विश्वास करते, ईमान रखते हैं कि आज वही जो कल था वही आज भी है, And He is that same yesterday, today, and forever. और वही कल आज और युगानु एक से हैं। And being same, He does things in a similar fashion और एक समान होने के नाते वो उन्हीं रीति से काम भी करते हैं and does things to help His children. और काम वो करते हैं ताकि अपने बच्चों की मदद करें। Amen. आमीन। You heard the testimonies our brother gave on Sunday. आपने उन गवाहियों को सुना होगा जो भाई निशान ने संडे की सुबह दिया, How that the Lord did mighty works in Chhattisgarh, कैसे खुदावंद ने बहुत महान कामों को किया छत्तीसगढ़ में, and He is doing it everywhere. और हर जगह वो कर रहे हैं। It's for us to see and understand how the Lord is working with His people. और हमें ये देखना और समझना जरूरी है खुदावंद कैसे अद्भुत रीति से अपने बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं। So blessed be the name of the Lord. सो खुदावंद का नाम जलाल पाए। Amen and amen. आमीन और आमीन। Sometimes we wonder, कभी कभी हम अचरज करते हैं that we pray for some and they don't get well, कि हम कुछ लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनको चंगाई मिलती नहीं, and we pray for some others and they get well. और कुछ औरों के लिए हम दुआ करते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। There is a purpose behind everything. हर चीज के पीछे एक मकसद है। If you read the message of my new ministry, अगर आप उस संदेश को पढ़ें जो कि नबी का है, मेरी नई सेवकाई, he prayed for the sister or brother, Sister Hattie Wright, again and again, and he said, I prayed and I prayed and I prayed, but God never healed her. और अगर आप पाएंगे तो अब नबी वहां कह रहे हैं कि मैंने बहन हैटी राइट की बहन के लिए लगातार कई दफा दुआ करी और मैं लगातार दुआ करता आया हूं और खुदावंद ने अब तक उन्हें चंगाई दी नहीं, He did never give her the healing. कभी उन्हें चंगाई दी नहीं। And he said, I've always wondered why God is doing like that. और कह रहे भाई ब्रैनम ने कहा कि मैं बड़ा
सोच रहा था खुदावन ने ऐसा क्यों किया है, then God has some purpose. तो फिर खुदावन के पास कुछ मकसद है। Why he heals some and why he doesn't heal some. कुछ लोगों को वो चंगाई क्यों देते हैं और कुछ लोगों को चंगाई क्यों नहीं देते। There are some reasons sometimes. कभी कभी कुछ कारण होते हैं। But when it came to the salvation of our two sons, लेकिन जब बात आई उनके दो बेटों के उद्धार की, the Holy Ghost came like an anointing. तो पवित्र आत्मा एक अभिषेक की मानिंद आया। Even in that hour, she could have asked for the healing of her sister, but she didn't ask that. और जबकि वो अभिषेक आया खुदावन के पवित्र आत्मा का उस कमरे में, वो चाहती तो मांग सकती थी अपनी बहन की चंगाई के लिए, लेकिन उन्होंने वो मांगा नहीं। And so God allowed that to go on. सो खुदावन ने उसको ऐसे आगे बढ़ने दिया, ऐसे चलने दिया। But doesn't mean that Sister Edith was lost. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहन ईडिथ जो है वो लॉस्ट हो गई। She was always in the kingdom of God. हमेशा से वो खुदा के राज में थी। And she went on to be with the Lord to enjoy his blessings on the other side. और वो प्रभु के पास चले गए ताकि उन तमाम आनंदों में वो शामिल हो सके प्रभु के साथ। So there are some reasons sometimes. तो कभी कभी कुछ कारण होते हैं। And God heals some, God sometimes don't heal others. खुदावन कुछ लोगों को चंगाई देते हैं और कुछ लोगों को चंगाई नहीं देते हैं कभी And कभी। we are no one to question the Lord why you did that. और हम कोई सवाल खुदा के सामने कर नहीं सकते कि खुदावन आपने ऐसा क्यों किया है। Amen. One thing we need to understand एक बात हमें समझने की जरूरत है that our God loves us more than we love ourselves. कि खुदावन हमसे ज्यादा, इससे ज्यादा कि हम अपने आप से प्यार करें, खुदावन हमसे उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। And what he has thought for us is always the best. और जो कुछ उन्होंने हमारे लिए सोचा है वो हमेशा बेस्ट है, उत्तम है। Bible says your thoughts are not like my thoughts. बाइबल ये फरमाती है यिर्मयाह में कि तुम्हारे विचार मेरी तरह नहीं हैं, But I have thoughts for you लेकिन तुमको लेकर मेरे पास विचार हैं to give you an expected end. ताकि तुम्हें एक अपेक्षित अंत दूं। And sometimes we are in turmoils and we think why it's happening like this, but there's a grace of God behind everything. और कभी कभी हम परेशानी में होती हैं और बड़ी बड़ी विपत्तियों में होकर गुजरते हैं और हम सोचते हैं ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी खुदावन का अनुग्रह हमें छोड़ता नहीं है। It's God who does everything. ये खुदावन है जो हर एक चीज करते हैं। So blessed be the name of the Lord. सो खुदावन का नाम जलाल पाए। And while he's brought you and I in this fellowship tonight, और जबकि उन्होंने आपको और मुझे इस फेलोशिप, इस संगति में आज रात्रि लेके आए हैं, let's see what he has for us. आइए देखते हैं कि उनके पास हमारे लिए क्या है। And the little subject that I would like to pick up now, और छोटा विषय जो इस समय मैं उठाना चाहूंगा, the breaking forth of another revival. एक बेदारी का, एक और बेदारी का खुलना और फूट के निकलना। And I want to show you that this is what is supposed to take place in the bride. और मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये कुछ है जो कि अब दुल्हन में होने वाला है। And it will be the final quickening for the going home of the bride. और ये अंतिम जगाया जाना होगा ताकि दुल्हन यहां से घर वापस चली जाए। Brothers and sisters, you can never limit God to any particular time. मेरे भाई मेरी बहन, आप खुदावंद को किसी खास समय को लेकर के सीमित नहीं कर सकते। This word of God is eternal. ये खुदा का कलाम अनंत है। It gets fulfilled in one age, एक युग में पूरा होता है, then it gets fulfilled in another age, फिर एक और युग में पूरा होता है, and it just keeps moving on and on. और ये आगे और आगे बढ़ता चला जाता है। Ecclesiastes says, सबोपदेशक में लिखा है, what has been shall be again. जो हो चुका वो दोबारा होगा। And so we know this, सो हम ये बात जानते हैं that God has kept certain things for us. कि खुदावंद ने कुछ खास चीजें हमारे लिए रखी हैं In this late hour, इस देर घड़ी में, because we know that the rapture is just close at hand. क्योंकि हम जानते हैं कि रैप्चर अब बहुत ही करीब है। We are burying our saints, हम अपने संतों को गाड़ के आते हैं, but we know this, brother. लेकिन हम ये भी जानते हैं One of these days, this all going to stop, इन्हीं किन्हीं दिनों में ये सब कुछ अब रुकने वाला है, because there's going to be a sweep. क्योंकि हम जानते हैं कि लहर आने वाली है। It's going to catch up with that group उस झुंड को वो पकड़ेगा in a month or so, as the prophet said. जैसे नबी ने बताया एक महीने के आसपास। And those who have worked with that word and labored with that message, और जिन्होंने संदेश के साथ और उस वचन के साथ काम किया है या मेहनत की है, suddenly they will be caught up in another dimension. अचानक वो एक दूसरे अय्याम में उठा लिए जाएंगे। Oh, what a glad day that would be. ओ कितना खुशहाल दिन वो होगा।
when we are caught up in that dimension, जब हम उस अय्याम में उठा लिए जाएंगे, in the land of blue grass. उस नीली घास वाले देश में। And then as Brother Branham met brothers and sisters, और ठीक जैसे भाई ब्रैनम ने भाइयों और बहनों से मुलाकात करी पर्दे के पार, what a meeting it would be in the air. ओ क्या हवा में ये मुलाकात होगी, When we'll not be old anymore, जबकि हम आगे को बूढ़े नहीं होंगे, but we'll be turned young, लेकिन हम जवान बन जाएंगे, and we'll meet and never to die anymore. और हम वहां मुलाकात करेंगे अजीजों से दोबारा कभी ना मरने के लिए। No pain, no death, nothing. कोई दर्द नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कुछ नहीं। And that's where we are coming to one of these days. इन्हीं किन्हीं दिनों में ये है वो स्थान जहां हम पहुंचने वाले हैं। That's what these meetings are for. इसीलिए तो ये सभाएं हैं। This is not a business class. ये कोई बिजनेस क्लास नहीं है। This is not educating on motivational speech. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दी जाए And just to give them some words of encouragement. No. और उनको उत्साह के कुछ शब्द दिए जाए। This Bible is real. ये बाइबल हकीकी है। This message is real. ये संदेश हकीकी है। And what has been said, so shall it be. और जो कुछ बोला जा चुका है वो वैसा का वैसे ही घटेगा। So God bless you. तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। And we now turn to Luke chapter 24. और हम निकालते हैं लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय। Well, scriptures are same. आप देखिए आए थे तो और जो वचन के हिस्से वो तो वही हैं। And every time we read it, there's something more keeps opening. और हर दफा जब हम उनको पढ़ते हैं कुछ और खुलता चला जाता है। First thing we understand, पहली बात जो हम समझते हैं, I'm reading now from verse 13. अब मैं 13वीं आयत से पढ़ रहा हूं। You see, this is the day he had risen up. आप देखिए ये वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह जी उठे थे। If I go in the language of this message, अगर मैं संदेश की भाषा शैली में जाऊं, early the morning a mighty angel had come बहुत ही सुबह सुबह एक महान शक्तिशाली दूत आ चुका था। and he had rolled away the stone. और तड़के आकर के उसने पत्थर को लुढ़का दिया था कब्र के सामने से। That was the day ये था वो दिन when the secret of life after death was revealed. जबकि मृत्यु के उपरांत जो जीवन है वो प्रकट हुआ। For the first time it was revealed पहली दफा ये प्रकट हुआ that death has been conquered. कि मृत्यु पे कब्जा कर लिया गया है। There were some sisters कुछ बहनें थीं who went to apply some balm and spices. जो कि गए कुछ मसाले लगाने और कुछ बाम लगाने। They had prepared in love. प्रेम में होते हुए उन्होंने इसको तैयार किया था कि प्रभु यीशु मसीह को जाके वो बाम और वो मसाले लगाएंगी। But they had not expected what they saw. लेकिन उन्होंने अपेक्षित नहीं किया था जो उन्होंने देखा वहां The पे। mighty angel came down एक महान शक्तिशाली दूत नीचे उतर के आया and he rolled away the stone और उसने पत्थर को वहां से लुढ़का दिया and said, "Come, और कहा आओ, the one who we have come to see. तुम जिसको देखने आए हो He is not here. अब वो यहाँ पर नहीं है, He is risen." वो जी उठा है। For the first time they understood पहली दफा वो समझे that resurrection of Lazarus and resurrection of the widow of the son of Man and all these resurrections were not some special events. Resurrection was also a major event that had to take place. तो जब उन्होंने उस पुनरुत्थान को देखा, नाइन की विधवा के बेटे को जी उठते हुए, और जब उन्होंने लाजर को जी उठते देखा, ये कुछ मुख्य घटनाएं नहीं थी लेकिन एक बड़ी घटना होने वाली थी पुनरुत्थान को लेकर के। Those isolated resurrections would somehow end up in a major resurrection. वो जो एक यहाँ एक वहां जो पुनरुत्थान था, अब वो बढ़ करके एक महान पुनरुत्थान में तब्दील होगा। The word which he had said had to be proved. जो वचन जो कलाम उन्होंने बोला था उसको जरूरी था कि वो साबित किए जाएं। And that Easter morning he proved his word. और उस ईस्टर की सुबह उन्होंने अपने वचन को साबित किया। He said, "I am resurrection." उन्होंने कहा मैं पुनरुत्थान हूं। Then how can resurrection be dead? तो फिर पुनरुत्थान कैसे मर सकता है? If he said, "I am resurrection and life," you can't bind that life. अगर उसने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं तो वो आप उस जीवन को बांध नहीं सकते। On that third day when he rose up उस तीसरे दिन जब वो जी उठा and that stone was rolled away, rock, और वो बड़ा चट्टान जो पत्थर था उस कब्र से बाहर सामने लुढ़का दिया गया, a seal was broke एक मोहर तोड़ी गई and a mystery was unfolded एक मोहर टूटी, एक भेद खुला that death has an end कि मृत्यु का खात्मा अंत है and death has been swallowed up in victory. और मृत्यु जय में निगली गई। And this one who had died had rose again, और ये जो मर गया था अब जी उठा है, but they never saw him. लेकिन कभी उसे देखा नहीं। Mary Magdalene saw. मरियम मगदलीनी ने उसको देखा। Others came and just saw an empty tomb.
बाकी आए केवल खाली कब्र देखी। The person had gone outside. शख्सियत जो था वो तो बाहर जा चुका था। He was living in another dimension. एक दूसरे याम में वो रह रहे थे। Right here. ठीक यहाँ पर। And he was roaming in that dimension. और ठीक यहाँ पर रह करके वो उस दूसरे याम में चल रहे थे। The season of rapture had started. रैप्चर का मौसम चालू हो चुका था। Graves were opening. कब्रें खुल रही थी। And the Old Testament saints were coming out. और पुराने ऐतनामे के संत बाहर निकल के आ रहे थे। He was talking with them. वो उनसे बातचीत कर रहा था। Giving them some allowances to go here and there. और उनको बोल रहा था इधर उधर जाने के लिए। And now he was walking in that dimension. और वो सही याम में चल रहा था। He was not in that cave. वो उस गुफा के अंदर नहीं था अब। That body had been swallowed up in victory. वो देह जो है वो जीत में निगल ली गई। And the best part, और सबसे उत्तम भाग, you find that the disciples were blind. आप पाएंगे कि जो चेले थे वो अंधे थे। His own disciples were blind to this fact. उसके अपने निजी चेले इस सत्य के लिए अनभिज्ञ थे। That their Lord had risen. कि उनका प्रभु जी उठा है। They were told. उन्हें बताया गया। They heard a message. उन्होंने एक संदेश सुना। The angel talked with them. दूत ने आके उनसे बातचीत की। But they still couldn't understand much. लेकिन फिर भी वो ज्यादा अधिक समझ नहीं पाए। You find somehow that disheartened attitude went on. आप पाएंगे कि अभी भी वो हतोत्साहित वाला जो एटीट्यूड है वो चलता रहा। You see, brother, God has a way of reviving his people. आप देखिए मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद के पास एक तरीका है अपने बच्चों को बेदार करने का। You and I can't revive ourselves. आप और मैं अपने आप को बेदार नहीं कर सकते। There is an unseen power here. एक अदृश्य सामर्थ शक्ति है यहाँ पर। There is a same Lord Jesus here. वही प्रभु यीशु मसीह यहाँ मौजूद हैं। Who has that power in him. जिनके अंदर ये ताकत है, कुव्वत है। To revive his children. कि अपने बच्चों को बेदार कर दें। And what a revival this was. We are going to see it. और ये क्या खूब बेदारी होगी जिसे हम देखेंगे। God really bless you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। And may God give me grace to show you certain things. और काश खुदावंद मुझे अनुग्रह प्रदान करे ताकि आपको कुछ बातें दिखा सकूं। Resurrection had happened. जी उठना हो चुका था। Angels had visited. दूतों ने आके मुलाकात कर ली थी। A mighty angel had come down and broken that seal. एक महान शक्तिशाली दूत ने आकर के उस मोहर को तोड़ दिया था। The true Easter seal. जो सच्ची ईस्टर वाली मोहर है। And it was revealed that he is not dead. और ये बात अब सामने जाहिर हो गई कि अब वो मरा हुआ नहीं है। Think of this. इसके बारे में सोचिए। What if, as we went in the graveyard today, क्या जैसे कि आज हम उस ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में हम गए, and an angel comes to us and tells, और क्या हो कि एक दूत आए और हमसे कहे, जिसे तुम गाड़ के आए थे वो वहां है नहीं. Oh my God, oh my Lord. You see? Would people believe? क्या लोग बाग विश्वास करेंगे? Those saints are not there now. वो संत जिनको तुमने वहां गाड़ा वो वहां पे है नहीं. Would you believe? क्या आप विश्वास लाएंगे? आप हाथ उठा रहे हैं ब्रदर, लेकिन ये इतना आसान है नहीं. I'm going to show you something now. मैं आपको कुछ दिखाऊंगा. In the case of our Lord Jesus, हमारे प्रभु यीशु मसीह के मामले में they rolled away the stone. उन्होंने पत्थर लुढ़का दिया. Said, come, आओ, see for yourself. आके खुद देखो. Is he here? क्या वो यहाँ पर है? He's not here. वो यहाँ है नहीं. He's risen वो जी उठा है and is gone to Galilee. और वो आगे गलील को गया है. Yes. You remember how he started his ministry? आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी सेवकाई को कैसे चालू किया? He started in Galilee. He started in Galilee. उन्होंने उसको गलील में चालू किया. Now you're going to find him back there. अब वापस, oh God bless you, उसने अपनी सेवकाई गलील में चालू किया और तुम्हें वो वापस वहीं गलील में मिलेगा. You'll find him there. तुम्हें वो वहां मिलेगा. There he's going to give you your future instructions. वहां पे भविष्य के निर्देश वो तुम्हें देगा. Try to catch that picture. इस तस्वीर को पकड़ने की कोशिश करें. Still they didn't understand much. अभी भी वो बहुत अधिक समझे नहीं. They are his own disciples. वो उसके अपने चेले हैं. Brothers and sisters, we saw there are two kinds of blindness. मेरे भाई और मेरी बहनों, हमने देखा दो किस्म के अंधेपन हैं. One kind of blindness is when God blinds some people. एक अंधापन ऐसा है जब खुदावन कुछ लोगों को अंधा करते हैं.
And there's another kind of blindness और एक और किस्म का अंधापन है where Satan blinds the people. जहां शैतान लोगों को अंधा करता है. Today I was reading the message and I found out how the people become blind. आज मैं संदेश पढ़ रहा था और मैंने देखा कि कैसे लोग अंधे हो जाते हैं. How do blindness come in the people? कैसे अंधापन लोगों में आता है. Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा it is their interpretation of the word that blinds them. ये उनका अनुवाद है वचन को लेकर जो उन्हें अंधा करता है. When a people becomes blind, जब लोग अंधे हो जाते हैं, it is because of a certain interpretation that they start believing in. और ये होता है इस वजह से क्योंकि एक खास अनुवाद पे, खास तर्जुमे पे वो विश्वास करने लगते हैं. And God is not in that interpretation. और उस अनुवाद, उस तर्जुमे में खुदावन है नहीं. His interpretation of the word is something else. वचन का तर्जुमा खुदा के लिए तो कुछ फर्क है. Because of that interpretation, उस तर्जुमे के वजह से the people become blind. लोग बाग अंधे हो जाते हैं. Whenever a people becomes blind, it's because of their interpretations. जब कभी लोग अंधे होते वो उनके तर्जुमे की वजह से होता है. And whenever God takes people out of that blindness, if He does, और जब कभी खुदावन चाहे और लोगों को निकालें उस अंधेपन से, how the Lord said to the Pharisees, कैसे खुदावन ने फरीसियों से कहा, you blind leaders of the blind. तुम अंधे अगुए जो अंधों की अगुवाई कर रहे हो, How can blind lead the blind? कैसे अंधे अंधे की अगुवाई कर सकता है. They both shall fall in the ditch. वो दोनों गड्ढे में गिरेंगे. But He never opened their eyes. लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने कभी उन फरीसियों की आंखों को नहीं खोला. Here they are two. लेकिन यहां पर आप पाएंगे दो हैं. He is opening their eyes. वो उनकी आंखों को खोल रहा है. He didn't open Cephas's eye. उसने कैफा की आंखें नहीं खोली. He never opened Hannah's eyes. कभी भी हन्ना की आंखें नहीं खोली. He never opened those Roman and Pilate's eyes. उसने कभी भी रोमियो की और पिलातुस की आंखें नहीं खोली. But He opened the eyes of these two. लेकिन इन दो जनों की आंखें खोल दी. Because they were His own disciples. क्योंकि वो उसके अपने चेले थे. Try to understand it. इसको समझने की कोशिश करें. What had blinded them? किस चीज ने उनको अंधा किया? The interpretation of the word. वचन के तर्जुमे के लेकर जो उनके पास था. And the prophet said, the way the people become blind is God comes, works amongst the people, does something and prove Himself according to what the word said. But the interpretations that the people have for the word blinds them to that present work of God. खुदावन बीच में आते हैं और आकर के काम को करते हैं और कुछ करके दिखाते हैं, वचन को साबित करते हैं उनके सामने. लेकिन उनके पास जो उस वचन का तर्जुमा है वो चीज उनको अंधा करती है, जो कि गलत तर्जुमा है. वो उनको उस काम को लेकर जो खुदा ने उनके बीच में किया अंधे हो जाते हैं. They see it. वो देखते हैं The living God amongst them. जीवित खुदा को अपने बीच में. They see that God working amongst them. खुदा को अपने बीच में काम करते हुए देखते हैं. But you know the problem? लेकिन आप जानते हैं समस्या क्या है? Because of that interpretation, उनके अपने तर्जुमे की वजह से they overlook those things. वो उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं. They take those things to be common. वो उन चीजों को हल्का समझ लेते हैं. And they say, this cannot be Jesus. This cannot be the Messiah. और वो कहते हैं ये मसीहा नहीं हो सकता. This cannot be that fulfillment. ये वो पूर्तिकरण नहीं हो सकती. When it was the fulfillment. जबकि वो पूर्तिकरण था. Whatever the prophet said, just fulfill according to what he said. और जो कुछ नबियों ने कहा पूरा पूरा वैसा ही घट गया. And it's passing before their eyes. और ये चीज उनकी आंखों के सामने से होकर गुजर रही है. And they are not able to see it. और वो इसको देख नहीं पा रहे. The reason is their own interpretation. कारण उनका अपना निजी तर्जुमा. God interprets His own word. खुदावन अपने वचन का स्वयं अनुवाद करते हैं. By bringing it to pass just as He said. ठीक उसको जैसे उसने कहा था वैसे घटाने के द्वारा. That virgin came. वो कुंवारी आई. That child was born. वो बच्चा पैदा हुआ. That John the Baptist came according to the promise. वादे के अनुसार वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया. That ministry took place. वो सेवकाई हुई According to the prophecies that were made. और नबूवतों के अनुसार जो की गई थी. For 3.5 years. 3.5 साल तक. Everything happened according to the scriptures. सब कुछ वचन के अनुसार घट गया. But they couldn't see it. लेकिन वो उसको देख नहीं पाए. Their eyes were withheld. उनकी आंखें रोकी गईं. Because they had an interpretation. क्योंकि उनके पास एक तर्जुमा था. Now listen now. अब सुनिए. This is something important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. God didn't open their eyes. खुदावन ने उनकी आंखों को नहीं खोला. He didn't. उसने नहीं खोला. If God had to open their eyes, what would He have to do?
अगर खुदावन को उनकी आंखों को खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? Give them a revelation that they come out of their old thinking to that new thinking. जरूरी होगा खुदावन उनको मुकाशफा दे ताकि वो अपनी पुरानी सोच और समझ से निकल के नई सोच में आ सके। But God didn't do it लेकिन खुदावन ने किया नहीं and allowed them to go in their old thinking. और खुदावन ने उन्हें अलाउ किया, अनुमति दी कि वो अपनी पुरानी सोच और समझ में चलते रहें। That's why he spoke to them in parables. इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांतों में, मिसालों में के बातचीत की, That seeing they saw but never saw it. ताकि देखते हुए देखे हुए लेकिन कभी देख ना पाए, Hearing they heard but they never heard it. सुनते हुए सुने लेकिन कभी सुन नहीं पाए, They remained blind. वो अंधे बने रहे। And God wanted that और खुदावन ये चाहते थे, because he wanted the gospel to shift to the Gentiles. क्योंकि खुदावन चाहते थे कि ये जो सुसमाचार है अब अन्य जातियों के पास जाए। Can it happen today again? क्या ये आज दोबारा हो सकता है That God allows certain people to remain blind कि खुदावन होने दे कि कुछ लोग अंधे बने रहें and God doesn't even want them to see it? और खुदावन नहीं चाहे कि वो देखें? You see, even if I want them to see, they can't see. आप देखें, यहाँ तक कि अगर मैं भी चाहूं कि वो देखें, वो देख नहीं सकते। Those sisters who had seen Jesus tried to persuade the disciples that he's risen, but they didn't believe. आप देखिए वो बहनें जिन्होंने सुबह उस दर्शन को पाया और देखा कैसे यीशु मसीह जी उठे और उन्होंने जाके चेलों को बताया कि यीशु मसीह जी उठे, लेकिन उन चेलों ने विश्वास नहीं किया। Until they got a personal revelation. God bless you, जब तक कि उनको एक निजी मुकाशफा नहीं मिल गया। But listen carefully. लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए, As far as the general public was concerned, जहां तक बातचीत है आम जनता की, Israel and the people, इजराइल और तमाम लोग, they remained blind. वो अंधे बने रहे। They couldn't understand nothing more. वो आगे को कुछ और समझ नहीं पाए। They only understood a healing rabbi उनको केवल समझ में आया कि एक चंगाई करने वाला एक रब्बी है, who operated his first pull and second pull, जिसने अपने पहले और दूसरे खिंचाव को कार्यान्वित किया, who discerned the secrets of the heart. जिसने कि हृदय की बातों को जाना और बताया। Nobody had a faintest idea किसी के पास रत्ती भर ख्याल और गुमान में यह बात नहीं थी that this morning कि ये आज सुबह our patriarch Abraham is on earth. कि हमारा पितृ इब्राहिम आज पृथ्वी के ऊपर है, Our prophets are on earth. हमारे नबी जो है आज पृथ्वी पर मौजूद हैं। A rapture has begun. एक रैप्चर चालू हो चुका है, The season of resurrection has begun. पुनरुत्थान का मौसम चालू हो चुका है। None of them had that idea. उनमें से किसी के पास रत्ती भर ख्याल गुमान में यह बात नहीं है, But that rapture had started. लेकिन वो रैप्चर चालू हो चुका था And within 40 days, और 40 दिन के अंतराल में he would lead the captivity captive. वो बंधुआई को बांध के ले जाएगा And it will all be over. और ये सब समाप्त हो जाएगा And move on into the next age. और ये अगले युग में बात पहुंच जाएगी। As far as they are concerned, जहां तक बात उनकी है, they are still waiting. वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। The Messiah would come. मसीहा आएगा, When the prophecies was getting fulfilled before their eyes. जबकि नबूतें उनकी खुद की आंखों के सामने पूरी हो रही थी। Listen, brother. सुनिए मेरे भाई, And this kind of blindness was partly in his own people as well. और इस किस्म का अंधापन उनके अपने निजी लोगों में भी पाया जाता था। If we are his disciples today, अगर हम आज उनके चेले हैं, could it be possible तो क्या यह संभव है that there's a part blindness in his own disciples? कि ये एक अंश में अंधापन उनके चेलों के बीच में भी मौजूद है? Yes. जी हाँ, There's something they are not able to realize. कुछ ऐसी चीज है जो वो समझ नहीं पा रहे, Something they are not able to come to. कोई ऐसी चीज जिसको वो पहचान नहीं पा रहे, जिस तक वो पहुंच नहीं पा रहे। And that is where comes the beauty of this chapter. और ये है वो जगह जहां पर इस अध्याय की खूबसूरती आती है। How God opened the eyes of his own disciples. कैसे खुदावंद ने अपने ही चेलों की आंखों को खोल दिया। And I'm going to read it out from the message. और संदेश से मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। But before I do, I'm reading from chapter 24, Luke verse 13. और इससे पहले मैं वहां जाऊं, मैं लूका की इंजील 24वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ रहा हूं। And behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 60 furlongs. और देखो उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पे था। And they talked together of all these things which had happened. और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। Though they were blind, यद्यपि वो अंधे थे, disheartened, broken in mind, हतोत्साहित, दिल में टूटे हुए थे, दिमाग में टूटे हुए थे, but one thing was there. लेकिन एक चीज थी, They were discussing our Lord Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह को
डिस्कस कर रहे थे। Perhaps that's what we are doing tonight. शायद वही काम हम आज रात्रि कर रहे हैं। Where 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। And how the prophet said, और कैसे नबी ने फरमाया, when you talk about him, he comes. जब आप उनके विषय में बातचीत करते हैं वो आ जाते हैं। When you are talking about Lord Jesus, he comes. जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं वो आ जाते हैं। Yes, brother. जी हाँ मेरे भाई। And so they are discussing those events. तो उन घटनाओं को लेकर वो डिस्कस कर रहे हैं। This mighty prophet that came. ये महान नबी जो आया था। Let me say it like this. आइए मैं इस प्रकार से कहूं। This mighty prophet that came. ये महान नबी जो आया था। And the mighty campaigns he had. और ये महान जो कैंपेन सभाएं उसने की। But how he has died. लेकिन कैसे वो मर गया। And how he's no more. और कैसे वो अब आगे है नहीं। We have buried him. हमने उसको गाड़ा है। And now today is the 3rd day. और आज तीसरा दिन गुजर चुका है। And how that ministry is over now. और कैसे वो सेवकाई समाप्त हो गई। And now we don't have that ministry amongst us. और वो सेवकाई अब हमारे बीच में है नहीं। If it would have continued, Lord, for a few more years. ओ अगर प्रभु हो सकता था कि ये सेवकाई थोड़ी और साल तक चलती रहती। We would have gone from this earth. हम इस पृथ्वी से चले जाते। But somehow you stopped it in between. लेकिन किसी रीति से आपने इसको बीच में ही रोक दिया। It's so disheartening to see this. ये बात बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। How we enjoyed those meetings. कैसे हमने आनंद लिया उन सभाओं में। We enjoyed those healings. हमने उन चंगाइयों में आनंद लिया। We enjoyed those discernments. उन परखे जाने में हमने आनंद लिया। We enjoyed him opening the seals in chapter 24. 24वें अध्याय में हमने मत्ती के हमने कैसे उसको मोहरे खोलते हुए देखा और हमने उसको एंजॉय किया। How we enjoyed him preaching church ages and the mysteries of the kingdom in Matthew 13. और मत्ती 13 में कैसे हमने राज खुदा के स्वर्ग राज के भेदों को बोलते और खोलते हुए सुना और देखा। How we enjoyed that ministry. कैसे हमने उस सेवकाई में आनंद लिया। But that ministry is over. लेकिन वो सेवकाई समाप्त हो गई। He's gone, buried in Eastern Cemetery somewhere. हाँ वो तो यहाँ से जा चुका और कहीं पर ईस्टर्न सिमेट्री में गाड़ दिया गया है। And now today is more than 35, 40, maybe 60 years. और आज लगभग 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं। But we are still discussing him. लेकिन हम आज भी उस सेवकाई को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। We are still discussing what he did amongst us. और हम आज भी डिस्कस कर रहे हैं उन्होंने हमारे बीच में क्या किया है। How so many years back this cloud came. कैसे कितने साल पहले ये बादल आया। And how he opened the seals. और कैसे उन्होंने मोहरों को खोला। How he spoke and the 7 voices. और कैसे उन्होंने बोला 7 आवाजों में होते हुए। And how they used Brother Branham's voice. और कैसे भाई ब्रैनम की आवाज को इस्तेमाल किया। Oh, we have heard it, yes. ओ हमने इसको सुना है हाँ। But if that man would have continued. लेकिन अगर हो पाता कि वो आदमी थोड़ा सेवकाई में और आगे चलता जाता। Oh, it would have been very different. तो बहुत ही फर्क चीज होती। It was we were thinking would restore the kingdom back to Israel. हमने सोचा था ये होगा वो जो कि राज को वापस फेर देगा इजराइल को। What were they looking forward for? वो किस ओर अग्रसर थे। The millennium. 1000 सालाना बादशाहत की And ओर। millennium was not then. और मिलेनियम तब नहीं था। Millennium is now. मिलेनियम तो आज है। Amen. How we thought. कैसे हमने सोचा। He said, I just need to lay quiet for a little while. उन्होंने कहा कि मुझे थोड़े समय के लिए शांत रहना पड़ेगा। You see a change in my ministry. आप मेरे सेवकाई में बदलाव देख रहे हो। And you just watch this 3rd pole. और तुम इस तीसरे खिंचाव को ध्यान से देखना। But you know what? लेकिन तुम जानते हो क्या? This man has gone. ये आदमी तो जा चुका है। That one man move is over, finished. वो एक मनुष्य वाला दौर समाप्त हो चुका है। And you know what? और आप जानते हैं क्या? The one who had gone was listening. जो चला गया था, जो शख्स चला गया था, वो ही इनकी बातें सुन रहा है। That Jesus was listening to these statements. वो प्रभु यीशु मसीह इन वाक्यों को जो वो बोल रहे थे सुन रहे थे। We need to understand, brother. हमें ये समझना जरूरी मेरे भाई। Who was in this man? इस आदमी के अंदर कौन था? Who was the one who was ministering this message? कौन था वो जो कि इस संदेश की सेवकाई कर रहा था? Listen to it carefully. ध्यान से सुनिए। And they talked together. और एक साथ वो बातचीत कर रहे थे। And they were saying like this. और इस प्रकार से कह रहे थे। Every now and then we are talking about rapture, rapture, rapture. हम रोजाना रैप्चर की बातें करते रहे। But you see, now and then some of our loved ones die and we have to still go to the graveyard. लेकिन हम पाते हैं कि कैसे हमारे बीच में लोग रुखसत होकर चले जाते हैं और मृत्यु में मर जाते हैं। On one hand we say, एक तरफ तो हम ये कहते this हैं bride will not die, she'll go in the rapture. कि ये दुल्हन नहीं मरेगी, ये रैप्चर में जाएगी। Every now and then somebody dies. और बीच में पाते हैं कि कभी-कभी ऐसे रोज आते हैं जब कोई मर जाता है। And we have to go to the graveyard. और हमें कब्रिस्तान जाना पड़ता है। And we have to bury our dead. और अपने मृतक को गाड़ना पड़ता है। Still death keeps on holding.
और हम पाते हैं कि अभी भी मृत्यु चल रही है। How long will it go on, Lord? प्रभु कब तक ये सब चलता रहेगा? They are disheartened a little bit. थोड़े से हतोत्साहित हैं। And you know what? और आप जानते हैं क्या? The Lord was there प्रभु वहां मौजूद थे and was hearing their talk. और उनकी बातचीत को, उनकी वार्तालाप को सुन रहे थे। एक चीज मैं इस चर्च में कहना चाहूंगा, जब इस चर्च के, मैं क्योंकि विश्वासियों की कलीसिया है, मैं विश्वास करता हूं, जब दो भाई दो बहनें अकेले में बैठ के कुछ डिस्कस करते हैं, वहां कोई होता है आमीन, जो आपकी सुनता है। आमीन। कि आप डिस्कस कर क्या रहे हैं। यह है बात। He's always there to listen to that. वो हमेशा वो मौजूद होते हैं इसको सुनने के लिए। Never think that nobody listens to what you said. कभी ये मत सोचिएगा कि कोई सुन नहीं रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। Any loose talk or anything you said is heard. कोई भी ऐसी बेकार की बात जो आपने बोली और कुछ भी आपने बोला वो सुना गया है। And somebody is taking a note of those things. और कोई इस बात का नोट रख रहा है। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? In this case, they are discussing the Lord. और इस केस में जो हम यहां पढ़ रहे हैं लूका 24 में, ये दो चेले प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातचीत कर रहे हैं। And how Brother Branham said, और कैसे भाई ब्रैनम ने कहा, when you discuss about him, he comes. जब आप उनके बारे में डिस्कस करते हैं वो आ जाते हैं। Verse 15 says, 15वीं आयत में यूं लिखा है, and it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। That person was in another dimension, हाँ, वो शख्सियत एक दूसरे अय्याम में था, which is much faster than this one. जो कि इस अय्याम से बहुत ज्यादा तेज गति पे है। Listen how the Bible says, देखिए बाइबल में कैसे मरकूम है, he drew near. वो करीब आ गया उनके। He stepped out of that dimension वो उस अय्याम से बाहर निकल के आया and stepped out with them. और आकर के उनके साथ चलने लगा। They had not noticed him before, पहले उस पे ध्यान नहीं दिया था, but somehow he came from behind. लेकिन कहीं पीछे से वो उनके पास आ गया। They had passed that place. उस जगह से होके गुजरे थे, They had never seen anybody, उन्होंने किसी को नहीं देखा था, but suddenly he was there. लेकिन अचानक से वो आ गया, From invisible to visible, अदृश्य से दृश्य में, and he starts talking with them. और आके उनसे बातचीत करने लगा। But their eyes were holden that they should not know him. लेकिन उनकी आंखें रोकी गई ताकि वो उसे देख ना पाए। And he started talking with them. और वो उनसे बातचीत करने What लगा। manner of communications are these that he have one to another as he walk and are sad? उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। नहीं, उसने कहा कि तुम एक दूसरे की शक्ल देखते हो, उदास हो और एक दूसरे से ये बातें कर रहे हो। क्या बातें कर रहे हो? क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम दोनों के चेहरे बड़े उतरे हुए हैं। I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। And one of them, whose name was Cleopas, answering said unto them, art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days? ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? Jesus our Lord knew their problem. हमारे प्रभु यीशु मसीह उनकी परेशानी, उनकी समस्या को जानते थे। They had enjoyed the blessings of a previous message. उन्होंने एक संदेश जो पहले आया था उसमें आनंद लिया था। They had enjoyed the blessings of a revival that had been. एक बेदारी जो हो चुकी थी उनके बीच में, उसमें उन्होंने आनंद लिया था। But there was to be another one, लेकिन एक और बेदारी आनी थी, which would bring them to the upper room. God bless you, जो उनको लेके आएगा उपरौठी कोठरी में, Which would bring the Holy Ghost in them. जो कि पवित्र आत्मा को उनके अंदर लेके आएगा, Which would bring a quickening power. जो कि एक चिल्ला उठाने वाली सामर्थ लाएगा। Now it was time. अब समय आ चुका था He which was with them now has to be in them. कि वो जो उनके साथ अब उनके अंदर हो। The season was changing. मौसम, ऋतु बदल रहा था। Now it was their season. अब ये इनका मौसम था। He was trying to tell them. He was trying to tell them. वो उनको बताने की कोशिश कर रहा I'm the था, first corn of wheat.
मैं पहला गेहूं का दाना हूं, and I had to be plucked up from this earth. जरूरी है कि मैं यहाँ पृथ्वी से उठाया जाऊं। Next thing is waving of the sheaf. और अगली चीज है पूले का हिलाए जाना। And when that time comes, और जब वो समय आएगा, it's your acceptance. ये तुम्हारा ग्रहण करना है, It's your time. ये तुम्हारा समय है, It's your ministry. ये तुम्हारी सेवकाई है। And I want you to understand that. और मैं चाहता हूं तुम इस बात को समझो, Not get trapped in the past. केवल एक पिछली बात में उलझे ना रहो। Get ready for the next move. अगले मूव के लिए तैयार हो जाओ। Oh church, can you understand it? कलीसिया, क्या आप इस बात को समझ पा रहे Their हैं? minds were trapped on Good Friday. उनका दिमाग तो फंसा हुआ था गुड फ्राइडे पे, And God wanted to bring them ahead और खुदावन उनको आगे बढ़ाना चाहते थे to the further events. उस आगे की घटनाओं पे। Everything didn't stop in Good Friday. हर एक चीज गुड फ्राइडे में रुक नहीं गई। There had to be another season एक और मौसम है when rapture would begin, जब रैप्चर चालू होगा, which is the main message. जो कि मुख्य संदेश है। What is the main message today? आज का मुख्य संदेश क्या है? A rapture, एक रैप्चर, a body change. एक देह बदलाव। But the people's their eyes were trained on that time. लेकिन लोगों की आंखें अभी वही पिछली बात पे लगी हुई थी, They were not able to understand it. वो उसको समझ नहीं पाए। And this is where you know something happened. और ये वो जगह जहां पाएंगे कुछ हुआ। Their eyes were holden उनकी आंखें रोकी गई, बंद की गई, that they should not know him. कि वो उसको पहचान ना पाए। He was with them. वो था उनके साथ। Can I say this? क्या मैं इस बात को कह सकता हूं? That mighty angel was on earth. वो महान शक्तिशाली दूत पृथ्वी पे मौजूद था, But their eyes were holden from him. लेकिन उनकी आंखें उसको देखने के लिए रोकी गईं। I repeat it again. मैं इसको फिर से दोहराता हूं, They only saw him in a picture. उन्होंने केवल उसको एक तस्वीर में देखा, They saw him in a video. केवल एक वीडियो में देखा। What their eyes were holden from? जिस चीज से उनकी आंखें रोकी गईं, He was a person वो एक शख्सियत था who also talked with them, जिसने उनसे बातचीत भी की, who was trying to tell some things. जो उन्हें बताने की कुछ कोशिश कर रहा था, And their eyes were holden from that person. और उस शख्सियत से उनकी आंखें रोकी गईं। Are you with me till now? क्या अब तक आप मेरे साथ हैं? They couldn't see that man. वो उस आदमी को देख नहीं पाए, And that man started saying, और उस आदमी ने कहना शुरू किया, What kind of communications are these ये क्या बातचीत कर रहे हो तुम आपस में, that you have one to another जो तुम आपस में बातचीत कर रहे हो, as ye walk and are sad? और जबकि तुम चल रहे हो और तुम बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो। Whatever situation you might be in, brother, sister, मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है किसी भी परिस्थिति में आप हो विपरीत। pick up a verse from the Bible मैं आपसे कहना चाहूंगा, वचन की एक आयत को उठा लें and start talking about that. और उसके विषय में बात करना शुरू करें। Start meditating on it for a minute. एक मिनट के लिए उस पर मनन करना शुरू करें। Suddenly your atmosphere will change. अचानक से आपका मौसम, आपके आसपास का मौसम बदल That जाएगा। unseen will open वो अदृश्य खुल जाएगा and somebody will step in. और कोई अंदर आ जाएगा। My child, मेरे बेटे, I've come to give you some fellowship. मैं तुम्हें कुछ संगति देने आया हूँ। I've come here to change your atmosphere. मैं तुम्हारे वातावरण को, मौसम को बदलने आया हूँ। And not just that, और केवल इतना ही I नहीं, am the solution to the problems you are thinking. मैं ही वो समाधान हूँ जिस समस्या के तुम सोच रहे हो। Can we say amen to that? क्या हम आमीन कह सकते हैं इस बात के लिए? Just see what happens here. देखिए यहाँ पर क्या हुआ। What manner of communications are these ये किस किस्म की बातचीतें हैं that you are talking one with another? जो तुम आपस में एक दूसरे से कर रहे हो? And I said, और बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो, दुखी हो। and one of them whose name was Cleopas, और में से एक जिसका नाम क्लियोपास था, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem? जो उसने उससे जवाब देके कहा, क्या तू अकेला परदेशी है यरूशलेम में, Who doesn't know what all has come to pass? जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या गुजरा है? You don't know? क्या आपको मालूम नहीं? He didn't know he's talking the one who was the event. वो नहीं जानता, क्लियोपास ये नहीं जानता, वो जिससे बातचीत कर रहा है वही तो वो घटना है जो हुआ था। Art thou only a stranger? क्या तू एकमात्र वो अजनबी है? He appeared to him in another form. वो उनके सामने एक दूसरे रूप में प्रकट हुआ। It was the same Jesus, वही यीशु मसीह थे, but in another form. लेकिन एक दूसरे रूप में। Same Jesus, वही यीशु मसीह, but in another form. He looked like a Gentile. और वो एक दूसरे रूप में थे और एक अन्य जाति जैसा दिखता था। He didn't look like an American. वो अमेरिकन जैसा दिख नहीं रहा था।
He was looking in another form. वो एक दूसरे रूप में दिख रहा था, Otherwise, they would have understood that this is that same Jesus. नहीं तो वो समझ जाते कि ये वही यीशु मसीह है, This is that same man. ये वही आदमी है। Try to catch what I'm saying. पकड़ने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूं। He was appearing to them in another form. वो उनके पास प्रकट हो रहा था एक दूसरे रूप में, But nevertheless, it was the same Jesus. लेकिन फिर भी वो वही यीशु मसीह था, Just another body, केवल एक दूसरी देह, another form एक और रूप in which he appeared to them. जिसमें होके वो उनके सामने प्रकट हुआ। And he said unto them, और उसने उनसे कहा, What things? कौन सी बातें What are you discussing? तुम बातचीत क्या कर रहे हो? And they said unto him concerning Jesus of Nazareth. और तब उन्होंने कहा उस अजनबी से कि यीशु मसीह के विषय में, यीशु नासरी के विषय में, यीशु नासरी के विषय में, which was a prophet, जो कि एक नबी था, mighty in deed and word before God and all the people. महान कामों में होते हुए और प्रभु के सामने। You know what? आप जानते क्या? That prophet was with them. वो नबी उनके साथ मौजूद था। That Jesus. यीशु, The only thing was he had changed his form. केवल बात यह थी कि उसने अपने रूप को बदल लिया था। Why has he come? वो आए क्यों है? Now, since you have heard these messages so many times, और क्योंकि आपने इन संदेशों को बहुत बार सुना है, he had come here to quicken them, प्रभु यीशु मसीह यहां पर आए इसलिए थे ताकि उन्हें जगा दें, that they don't stop at that ministry, कि वो उस सेवकाई पे ही केवल टिक ना जाएं और रुक ना जाएं, but come to this season लेकिन इस मौसम पे आ जाएं when a rapture had to take place. जबकि एक रैप्चर को घटना था, And it was taking place. और वो रैप्चर घट रहा था, चल रहा था। From there, I'm drawing a type here. वहां से लेकर मैं यहां पर एक तस्वीर ला रहा हूं। The denominations are waiting for the rapture. डिनोमिनेशंस जो हैं वो रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं। But when Brother Branham preached rapture, सॉरी, but when Brother Branham preached rapture, लेकिन जब भाई ब्रैनम ने रैप्चर का संदेश प्रचार किया, the Lord himself shall descend with a shout. प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा एक ललकार के साथ, And that shout message has taken place. और ललकार वाला संदेश हो चुका है। The living ones have been gathered. जीवित इकट्ठा हो चुके हैं। That's the first phase of the rapture. रैप्चर का ये पहला चरण है। But how many are aware of that? लेकिन कितने लोग इस चीज को के लिए जागरूक हैं? And that angel, और वो दूत, who is the king of that rapture, और वो दूत जो कि उस रैप्चर का राजा है, was right with them. ठीक उनके साथ मौजूद था। He was standing between two dimensions. दो अय्यामों के बीच में वो खड़ा था। One where the saints were rising, एक अय्याम वो जहां पे कि संत लोग जी उठ रहे थे, and one with some living ones. और कुछ जीवितों के साथ। He was walking in both the places. दोनों जगहों पे वो चल रहा था। Lots was taking place in an unseen dimension बहुत ज्यादा अधिक घट रहा था दृश्य अय्याम में during that time. उस समय में, And the living ones didn't know what was happening. और जो जीवित थे उनको मालूम नहीं कि क्या चल रहा है, But their eyes were to be opened लेकिन उनकी आंखें जरूरी थी कि वो खोली जाएं, and see how God does things. और ताकि वो देखे खुदावन चीजों को कैसे करते हैं। These people needed a revival. इन लोगों को बेदारी की जरूरत थी। Listen, brother, सुनिए मेरे भाई, there is a revival एक बेदारी है for the final quickening. अंतिम जगाए जाने के लिए, जगाने के लिए नहीं कहूंगा ब्रदर, जिलाने के लिए. एक अंतिम जिलाने के लिए, Where the bride is literally caught home. जबकि दुल्हन वास्तविकता में घर उठा ली जाए। Now listen how he'll bring it. अब ध्यान से सुनिए वो कैसे इसको लेके आएंगे। Is the way he did it here. वही तरीका जैसे उसने यहां पर किया। I'm reading from this message. मैं संदेश से पढ़ रहा हूं। Events made clear by prophecy. नबूवत के द्वारा है वो घटना जो स्पष्ट की गई। This is 965. ये 1965 का संदेश है। August 1, 1965. अगस्त 1, 1965। Morning he had preached God of this evil age. सुबह उन्होंने प्रचार किया था इस बुरे युग का देवता। And we saw in past 2 Tuesdays some comments from that. और पिछले 2 मंगलवारों से हमने कुछ वाक्यों को वहां से देखा। Is that right? क्या बात सही है? God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। In the evening he's bringing this message शाम को वो इस संदेश को लेके आ रहे हैं because he wants to pray for some sick people. क्योंकि वो कुछ बीमारों के लिए दुआ करना चाहते हैं। But remember,
लेकिन याद रखिए, when you go through this entire message, जब आप इस पूरे संदेश में से होकर गुजरें, his thoughts are continuing on from message to message, उनके विचार संदेश पर संदेश आगे बढ़ते जा रहे हैं, where he's trying to hit on this prophetic ministry जब वो इस नबूवत वाली सेवकाई पे जोर देना चाह रहे हैं and who a prophet is. और इस बात को बताना चाह रहे हैं कि एक नबी कौन है, Because Olin Walker had come, क्योंकि ओल्डन वॉकर आ चुका था, Junior Jackson had come, जूनियर जैक्सन आ चुका था, and now there was something else coming now. और अब कुछ और आगे आ रहा था, And how he had said, और कैसे उन्होंने कहा था, there's going to be one more ride. एक और सवारी होगी, We are going to ride this trail again. हम इस सवारी को एक बार और करेंगे। That's a promise, he said. उन्होंने कहा ये एक वायदा है। And now, with those things in his mind, अब ये बातें जबकि उनके दिमाग में थी, he wants to bring a healing service, अब इसके साथ वो एक चंगाई की सभा लाना चाहते थे, and he wants to turn to Luke 24, और वो लूका 24 निकालते हैं, because he wants to apprise the church regarding some future things. क्योंकि वो कलीसिया को आगे आने वाली घटनाओं को लेकर के अपराइज करना चाहते थे, जगाना चाहते थे। Something was taking place, he said. उन्होंने कहा कुछ चीजें हैं जो घट रही हैं, Something is fixing to happen. कुछ अब घटने को है। He said that. उन्होंने इस बात को You कहा, heard it many times. आपने कई दफा सुना है। This time he picks up Luke 24. इस दफा ये लूका 24 उठाते हैं, It appears that he's picking up for the same purpose, और लगता है ऐसा कि उसी मकसद के लिए वो उठा रहे हैं, to show that sign before the people. ताकि उस चिन्ह को लोगों के सामने दिखाएं। But if you read the message closely, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक संदेश को पढ़ें, you can understand that it is beyond that. कि आप पाएंगे कि ये बात उसके भी परे है। I'm reading from paragraph 108. मैं 108 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं, Notice ध्यान दीजिए how Jesus, the Word, कैसे यीशु जो वचन है, made these two heartbroken disciples know he was their Messiah. कि उसने इन दो टूटे मन वाले चेलों के सामने प्रकट किया कि वो मसीह है, The Messiah, मसीह हैं, the promised Word. वायदा किया हुआ वचन। You see, they were sad. आप देखिए वो दुखित थे, The revival which was there with them had gone. उनकी बेदारी जो उनके पास थी अब वो जा चुकी थी, Their first calling had taken place, उनकी पहली बुलाहट तो हो चुकी थी, and they had enjoyed a revival in that. और उसमें होते हुए उन्होंने बेदारी को एंजॉय किया। But there's a brief time लेकिन थोड़ा बीच का टुकड़ा है they somehow lost that revival. जिसमें उन्होंने अपनी बेदारी को खो दिया, And now God is going to bring that revival back to them. और अब खुदावंद उनके पास उस बेदारी को वापस लौटाएंगे, He's going to take away their sadness, उनके दुखी मन को वो दूर करेंगे, and He's going to fill them with joy. और आनंद से उनको भर देंगे। I hope you're catching it. मैं आशा करता हूं पकड़ रहे होंगे, How He made these two heartbroken disciples know He was the Messiah. कैसे उसने इन दो टूटे दिल वाले चेलों पे अपने आप को जाहिर किया कि वो मसीह हैं, The Messiah, वो मसीहा, the promised Word. वायदा किया हुआ वचन। Notice what He done. ध्यान से देखिए उन्होंने क्या किया, He appealed to prophecy. उन्होंने नबूवत पे जोर भरा। इनकी आंखें कैसे खोलें, इनको वापस बेदारी में कैसे लाएं, इनके सोए हुए मन को फिर से कैसे जगाएं। यस सर, वहां प्रभु यीशु मसीह ने शरण ली, नबूवतों की मदद ली, कुछ नबूवतों की। आमेन। He started a message on prophecies. उसने एक संदेश चालू किया नबूवतों पे। Notice, ध्यान दीजिए, fools, निर्बुद्धि, slow to believe. विश्वास करने में मनमतियो। And that's what we are today. यही है हम आज रात्रि। All that the prophets wrote. सब कुछ जो नबियों ने लिखा, अगर आपको सब कुछ याद हो जो नबियों ने लिखा, आप यहां ऐसे बैठ ही नहीं सकते बिल्कुल सच है। जैसा इस वक्त आप बैठे हैं। अगर आपके पास संपूर्ण ज्ञान हो उन नबियों का, उन नबूवतों का, और उसकी सही इंटरप्रिटेशन का जो आज पूरा होना है, आप उस हालत में हो ही नहीं जिसमें आज आप पढ़ रहे हो भैया। Notice fools, ध्यान से देखिए, मूर्ख, slow to believe all that the prophets wrote. जो कुछ नबियों ने लिखा उसको मानने में मनमतियो। Now he never said, उसने कभी नहीं कहा, well what does the church say about it? कि चर्च इसके बारे में क्या कहता है। उसने कभी ये शरण नहीं ली कि कलीसिया क्या कहती है, उसने ये कहा वचन क्या कहता है, नबूवत क्या कहती है। आमेन। लोगों ने क्या कहा है बकवास, बिल्कुल सच है, लोगों के कथन पे कोई बेदारियां नहीं आएंगी। सच है। ये देखें कि नबूवत क्या कहती है।
They give him the story. उन्होंने उसको कहानी बताई, उन्होंने उसको कहानी सुनाई. They know all the events that happened. वो तमाम घटनाओं को जानते थे जो हुआ, They was all sad. वो बिल्कुल दुखित थे. They began to tell him, उसको बताने लगे, are you just a stranger here? क्या आप यहाँ पर केवल अजनबी हैं? Or you don't know what's happened in क्या Jerusalem? आपको मालूम नहीं कि यहाँ यरूशलेम में इन दिनों में क्या हुआ? He said, what things? उसने कहा कौन सी चीजें? Like he didn't know. ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको मालूम नहीं. वो ऐसे प्रतीत करा रहा है अपने आप को उनके सामने जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं. See, he does things sometime just to see what you'll do about it. वो कई बार ऐसी चीजें करते हैं ताकि देखे कि आप इसके बारे में क्या करेंगे. वो उनके रिएक्शन सुनना चाह रहा था. हाँ जी. वो उनके दिल को लेना चाह रहा था. आमीन. कि उनका दिल क्या बोलता है. हाँ जी. So he said, what things? Who was it? तब वो प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि कौन सी बातें, क्या Who was it? What's happened? वो कौन था, क्या Are हुआ? you just a stranger? क्या तुम केवल अजनबी हो? And was talking right to the man they had lived with for 3.5 years and didn't know him. और ठीक उस आदमी से बातचीत कर रहे थे जो उनके साथ 3.5 साल तक रहा, चला फिरा. Oh brother, ओ मेरे भाई, that same person who ministered, वही शख्सियत जिसने सेवकाई की, and that one man 1965 he died, और एक मनुष्य जो 1965 में वो तो चला गया, मर but गया, that man is still here. लेकिन वो आदमी अभी यहाँ मौजूद है, Christ. मसीह. And they didn't know और वो नहीं जानते थे that same person that moved in those meetings. कि वही शख्सियत जो उन सभाओं में चलता था, He used to say, जो कहता था, that sister, वो बहन, that shadow is gone. वो परछाई चली गई, That brother, वो भाई, that shadow is gone. वो परछाई, काली छाया चली गई. That same Jesus वही प्रभु यीशु मसीह who was in those meetings जो कि उन सभाओं में था, was talking right with them ठीक उनके साथ उस समय बातचीत कर रहा था, and was same in those potentials. और सामर्थ्यों में वही थे वो. Listen now. सुनिए, Well, they said, उन्होंने कहा, what things? What happened? क्या बातें, क्या चीजें? Well, they said Jesus of Nazareth, which was a prophet. तब उन्होंने कहा कि यीशु नासरी जो कि नबी था, There's no doubt in our mind. हमारे हृदय में कोई भी शक नहीं ये तो है. हम जानते हैं कि वो नबी था. Amen. बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? ये सोच के देखिए. ये तो हमें मालूम है कि वो नबी था. तो अंदर वो मुस्कुरा रहा होगा. बहुत बढ़िया बात. कम से कम तुम में अंदर ये तो है. उन फरीसियों में तो ये भी नहीं है. Well, they said Jesus of Nazareth, उन्होंने कहा कि यीशु नासरी which was a prophet. जो कि नबी था, There's no doubt in our mind. हमारे हृदय में बिल्कुल भी शक नहीं है. He was mighty in word and deed before all the people. तमाम लोगों के सामने कामों में और वचन में बिल्कुल महान था वो. We seen him do things. हमने उसे चीजें करते हुए देखा. That he was identified the prophet of God for this age. और उसने जो काम उसने किया हमारे बीच में, उसने पहचान दी कि ये खुदा का नबी है हमारे युग के लिए. ये कौन सा क्लियोपास बोल रहा है और किससे बोल रहा है? ये है बात. Oh brother, ओ मेरे भाई, this is not a message. ये कोई संदेश नहीं है, This is a prophecy ये एक नबूवत है which has to be fulfilled in a specific time. जिसे एक खास समय में पूरा होना है. इतना तो हमें मालूम है कि वो नबी है. कामों में और वचन में वो साबित कर चुका, और हम तो विश्वास करते हैं कि यही आज के युग का नबी है. Amen, amen. ये लाइन बोली जा रही है. कौन बोल रहा है ये? कुछ समझ में आ रही है आपके? जी हाँ. That he was identified the prophet of God for this age. और उसको पहचान मिली कि वो खुदा का नबी है इस युग के लिए. इतना तो हम जानते हैं. We know that. हम इस बात को जानते हैं. And we believed और हमने विश्वास किया that he would be the redeemer. कि वो छुड़ाने वाला होगा. That he would redeem Israel. इस्राएल को वो ही छुड़ाएगा. हम ये सोचते थे कि अब रैप्चर आ गया और अब हम उड़ने वाले हैं. मैं कुछ लाइनें बदल रहा हूं लेकिन कुछ बोल रहा हूं. God bless you, brother. And he, और वो with them, उनकी ओर मुड़ा. then he turns and said, तब वो मुड़ा और कहा, you fools. तुम निर्बुद्धि. अब थोड़ा झटका लगा. Slow of heart मदमतियों, to believe that all that the prophet said about him उन तमाम नबियों पे विश्वास करने में जो जिसने उसके विषय में बातें कही, wouldn't come to pass. क्या वो पूरी नहीं होंगी?
Watch him now go back to prophecy. ध्यान से देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे वापस उन नबूवतों में जा रहे हैं। Remember, याद रखिए, before the squeeze comes, इससे पहले दबाव आए, that same Jesus will hold a prophetic meeting. वही प्रभु यीशु मसीह एक नबूवत, एक भविष्यवाणी वाली मीटिंग को लेंगे, And he'll go and turn the church back to some prophecies. और कलीसिया को मुखातिब करेंगे, फेरेंगे कुछ नबूवतों पे, Some scriptures for this time. कुछ वचन की आयतें जो इस समय के लिए हैं। Watch him now. Sit down, please. ध्यान से उसको देखिए, Go back to prophecy. वापस नबूवतों पे गए। What a rebuke for unbelievers. हैं? अविश्वासियों के लिए क्या एक घुड़की है। मैं तो सोचता ये लिखा होना चाहिए, What a rebuke for believers. लेकिन लिखा क्या है, विश्वासियों के लिए क्या एक खूब उल्हाना है। Claimed they believed him. और दावा भर रहे थे कि हम उस पे विश्वास करते हैं। हम तो बादल पे विश्वास करते हैं। हम तो बादल को 24 घंटा अपनी कार में और अपनी बस में, गाड़ी में, सॉरी, अपने घर में टांगते हैं। और कहता कि विश्वास करते हो, करते हो विश्वास। What a rebuke for believers. विश्वासियों के लिए क्या उल्हाना है ये। Claim they believed him. दावा भरते थे कि वो उस पे विश्वास करते हैं। Notice how he approached the subject. ध्यान से देखिए विषय पे वो कैसे गए। He never come right out and said, I am your Messiah. वो आके सीधे सीधे ये नहीं कह रहे मैं तुम्हारा मसीहा हूं। He could have done it, ऐसा कर सकते थे or he was. क्योंकि वो मसीहा थे। But notice, लेकिन ध्यान दीजिए, he identified himself in a word. उन्होंने अपनी पहचान वचन में दी, Then they would know. तब वो जान पाए। If he'd have said it, he could have said अगर वो कह सकते तो कह देते that it wouldn't have been so. कि ऐसा नहीं है। But when he went and began to speak on all the prophets, लेकिन जब वो आगे बढ़े और तमाम नबियों के विषय को लेकर बात करने लगे, said about him, जिसने कि जिन नबियों ने उसके विषय में बोला था, and they seen it, और उन्होंने इसको देखा था, then they could tell themselves तब वो अपने आप को ये बता सकते थे if they were God's children. कि क्या वो खुदा के बच्चे। अगर वो खुदा के बच्चे होंगे तो इन नबियों की बातों से समझ लेंगे आमेन कि आज क्या घटना पूरी होनी थी। आमेन 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 आमेन। He knows who he's talking with. वो जानता है वो किससे बात कर रहे हैं। He's not talking with unbelievers or make believers. वो अविश्वासियों से और बनावटी विश्वासियों से बात नहीं कर रहे। He knows he's talking with his own children. वो जानते हैं कि मैं अपने बच्चों से बातचीत कर रहा हूं। And since they are my children, और क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, they will understand prophecy. वो नबूवत को समझ जाएंगे। Their minds are quickened to this level. उनका जो मन है वो इस हद तक जागृत है। यहां मैं की रखना चाहूंगा आपके सामने, आज जो इलेक्ट जो रैप्चर में जाने वाला है या वाली है, खुदा स्वयं जानते हैं कि उनका मन यहां तक तो क्विकेंड है, अगर वो मेरे बच्चे हैं, कि वो नबूवत उनके सामने अगर मैं रख दूं और उस नबूवत की पूर्ति को देख लें, उन्हें बात समझ में आ जाएगी। आमीन आमीन। Others will remain confused, बाकी तो भ्रमित रहेंगे, but these will understand. लेकिन ये समझ जाएंगे। हालेलुया। He starts with a meeting, वो चालू करते हैं एक मीटिंग से, but call their attention to what the prophets had foretold. लेकिन उनके ध्यान को उन बातों पे जो नबियों ने पहले कही थी उस पे लेके आया। And said to look for in the time that the Messiah, his age, would be manifested. और उन्होंने बताया कि कैसे वो बातें जो नबियों ने पहले बोली थी कैसे मसीह के जमाने में पूरी हुई। He, as John, let the word, the Bible identify their message. जैसे यूहन्ना ने अपनी पहचान दी वचन से, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं, ऐसी उसने अपनी पहचान दी वचन से। आमीन। आइडेंटिफाई देयर मैसेज, अपनी पहचान दी, उसने अपने संदेश की पहचान वचन की नबूवतों में होते हुए दी। आमीन। Any true prophet would do it. कोई भी सच्चा नबी ये काम करेगा। अब ये any true prophet कहने की क्या जरूरत है? हाँ जी। Didn't come out and say I am he. सीधे सीधा आके ये नहीं कह रहा मैं वो हूं। That's not a true prophet of God. ये खुदा का सच्चा नबी नहीं होगा। See, but he said go back in the scriptures. लेकिन उसने कहा जाके पीछे देखो उन वचन के He आयतों never में। fails his way of doing it.
वो कभी भी अपने तरीकों को बदलता नहीं करने का। See, he said, we know Moses. उसने कहा कि हम मूसा को जानते हैं। He said, if you would have known Moses, you'd know me. उसने कहा कि अगर तुम मूसा को जानते तो मुझे जानते। He said, Moses wrote of me. उसने कहा मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। Said, search the scripture. उन्होंने कहा वचन में खोजो। In them you think you have eternal life. तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। And the scripture is what testifies of me. और वचन धर्मशास्त्र वो है जो मेरे विषय में गवाही देता है। Go and look in the scripture and see it. जा करके पवित्र शास्त्र में देखो। Here, he never changes his way of doing it. आप देखिए वो कभी अपने तौर तरीके बदलते नई चीजों करने के। Never has changed. कभी बदले नहीं है। He never can change. कभी बदल नहीं सकते। Because he is the unchanging God, see. क्योंकि वो कभी ना बदलने वाले खुदावन है। देखो। Notice he went right back to these two disciples. आप देखिए वापस इन दो चेलों के पास वो गए। Cleopas and his friend. क्लियोपास और उसका मित्र। On the road to Emmaus. इमाउस की रोड पे। And said, appealed to the scriptures to them. और उनके सामने वचन को खोल के दिखाया। Said, why are you so foolish? और कहा तुम इतने ज्यादा बेवकूफ क्यों Not to हो? believe that every word the prophets wrote concerning the Messiah would have to be fulfilled. और कहा कि क्या वो जरूरी था कि वो तमाम बातें जो नबियों ने नबूवत के रूप में इस मसीहा के लिए कहा था वो पूरी ना हो? What would he do tonight? आज रात्रि वो क्या करेंगे? Would he pick out some scriptures for this time? क्या इस जमाने के लिए, इस समय के लिए कुछ आयतों को नहीं उठाएंगे? Would he pick out some paragraphs? क्या कुछ अनुच्छेदों को नहीं उठाएंगे? Some quotes कुछ हवालों को which are to be fulfilled now? जिनको की अब पूरा होना जरूरी है? And talk with Cleopas and his friend again tonight? और क्लियोपास और उसके मित्र से आज दोबारा बातचीत करें And show to them, और उन्हें दिखाएं what do you think about this? इसके विषय में तुम क्या सोचते Who हो? do you say this तुम is? क्या कहते हो ये कौन है? What about this prophecy? इस नबूवत के बारे में क्या कहोगे? My, माय my. हालेलुया। Oh, how it stirs the heart. कैसे ये हमारे हृदय को उत्तेजित करता है। Oh, what a day. ओ क्या खूब दिन। John did the same thing. यूहन्ना ने वही काम किया। Search the scriptures. जाके वचन में खोजो देखो। Look back and said, there'd be a voice of one crying in the wilderness. और कहा देखो कैसे लिखा है वहां पर कि एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द है। जब कभी कोई सच्चा आया, यस, उसने वचन से अपनी पहचान दी, मैं ये हूं। आमेन आमेन आमेन। ये रही मेरी आयत। आमेन। अब तुम्हारा टाइम है, तुम ढूंढो आमेन आमेन आमेन। कि मेरे विषय में अगर कहीं लिखा है, कहां लिखा है, आमेन। और अगर लिखा है तो क्या वो आज पूरा हो रहा है? आमेन। माय, What a challenge. ओ क्या खूब चुनौती। Where did I come from? See, मैं कहां से आया हूं? that should have made it plain to them, right? ये चीज उनके सामने स्पष्ट कर देती कि इस Should बात make को it plain today. आज भी स्पष्ट कर देगा। The thing that we see the Holy Spirit doing. उन कामों को जो पवित्र आत्मा कर रहा है जब हम देखते हैं। He once said, उन्होंने एक बार कहा, search the scriptures. वचन पवित्र शास्त्र में And ढूंढो he खोजो। wants us to do it today. और वो चाहते हैं कि हम यही काम यानी कि वचन में जाएं और खोजें। इस काम को हम आज करें। यहां मैं रुक के आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप में से कितनों ने सारे नबी पढ़ लिए हैं? कितनों ने यिर्मयाह का पहले से आखिरी अध्याय, हिजकियेल 1 से आखिरी, यशाया 1 से आखिरी, नहूम, मीका, ओबदिया पढ़ रखा है? पूरा सारे नबी जो हैं, आपने सारे नबी पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक कंप्लीट किए? कुछ लोगों ने पढ़े हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे एक सवाल, जबूर, अगर आज वो प्रभु यीशु मसीह आए और एक आयत ओबदिया की उठाएं, आपने तो ओबदिया पढ़ा ही नहीं है? और तब आपको एक समझ में आए बात, यू मीन ये जो बातें हमारे बीच में हो रही हैं बाइबल में कहीं लिखी थी? वो कहेगा ये रही वो जगह जहां आज जो तुम्हारे बीच में हो रहा है लिखा है। दैट सेम होली गोस्ट, वही पवित्र आत्मा। आप ये सोच के देखिए, क्या उनके पास गिनी चुनी आयतें हैं जिसमें वो 5-6 आयतों में घूमते रहे?
आमीन। वो आयतें हैं आज की और वो पूरी हुई। क्या कुछ और भी लिखा है? मैं उनसे भी पूछूंगा जिन्होंने पढ़ लिया है, क्या आप देख पा रहे हैं ब्रदर सिस्टर? पढ़ना एक बात है, अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया, लेकिन पवित्र आत्मा उन वचन की आयतों को क्विकन करें और दिखाएं कि आज क्या हो रहा है, ये एक दूसरी बात है। आप लोग हैं मेरे साथ? Amen. तब आपको एक चीज समझ में आएगी कि बेदारी की जड़, बेदार होना जुड़ा है वचन ढूंढने में। आमीन आमीन। जब मेरी जिंदगी में बेदारी आई और मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और मैंने पहला प्रचार किया, मैं बात कर रहा हूं 1985, 86, 87 की बात, ये मेरी गवाही है, मेरी बाइबल रंगना शुरू हो गई। मैं उन दिनों बाइबल बहुत पढ़ रहा था और तब ये नबी का मैसेज आया और वो बाइबल से यहां जुड़ा और पवित्र आत्मा ने मुझे लेके गए। कम से कम 10-20 साल के बाद मुलाकात मेरी हुई उन विदेश के प्रचारकों से, उस टाइम कोई था नहीं, और मैंने पाया कि वो बातें जो प्रभु ने मुझे उन दिनों में बताई, 20 साल बाद वो बातें वही प्रचार कर रहे हैं। आमीन। आप सुन रहे हैं? आमीन। यह है पवित्र आत्मा का काम। आमीन। आपने सुना नबी के मैसेज में, अगर आप बेदारी चाहते हैं, यू वेलकम द वर्ड, आप वचन को आमंत्रित करें। आज ये वर्ड केवल एक इतिहास की किताब नहीं, इसमें फिर से नबी ने वही बात शेयर करी, क्योंकि इस 65 की सीरीज में वो एक मेन बात रख रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ बुक ऑफ हिस्ट्री और द स्टोरीज, दिस इज अ बुक ऑफ प्रोफेसी। ये केवल इतिहास की किताब, कहानी किस्सों की किताब नहीं, लेकिन ये नबूवतों की किताब है। इट्स क्राइस्ट रिवील्ड इन हिज ओन वर्ड। ये मसीह है जो अपने वचन में प्रमाणित होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग ब्रदर? क्या समझ पा रहे मेरे भाई? अगला मूव जो आएगा वो यही वचन से आएगा। आमीन। और ये उनके पास आएगा जिन्होंने वचन पढ़ा है। अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सर्च द स्क्रिप्चर्स, वचन में जाके खोजो, मैं कह रहा हूं पूरी लाइन बोला करिए। यीशु मसीह ने कहा, उनसे चेलों से जाके कहा कि जाकर के वचन में खोजो। तो आप क्या वचन में खोजें? ये आज्ञा है। जैसे एक आज्ञा है प्रभु भोज की, एक आज्ञा है बपतिस्मे की, ऐसी क्या ये भी एक आज्ञा है? Search the scriptures. वचन में जाके खोजो। For in them you think you have eternal life. उसमें सोचते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। And they that testify of who I am. और वे हैं वो आयतें वो हैं जो मेरी गवाही देती हैं कि मैं कौन हूं। If that same mighty angel would come here, अगर वही महान शक्तिशाली दूत यहाँ पर आए, won't he say the same thing? क्या इन्हीं बातों को दोहराएगा नहीं? Search the scriptures. वचन में जाके खोजो And see from Genesis to Revelation. और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देखो। Those types, those shadows, those pictures and those prophecies, what they said for me today. उन तस्वीरों को, उन कहानियों को, उन नबूवतों को उन्होंने आज इस समय मेरे विषय में क्या कहा है और क्या बोला है। And am I not fulfilling what I said? और क्या मैं उन बातों को पूरा नहीं कर रहा जो मैंने कहा है? My first work, which was dying at the cross, is over. मेरा पहला काम जो कि क्रूस पे जाके मरना था वो तो समाप्त हो गया। But this is another time. लेकिन ये एक दूसरा समय है। This is when I've come to claim my bride. ये वो समय है जब मैं आया हूँ अपने दुल्हन को पे दावा भरने I के come to bring a rapture. मैं आया हूँ एक रैप्चर करने के लिए। I've come here to change these elements. मैं आया हूँ ताकि इन तत्वों को बदल दूं। Did the scripture speak about it? क्या वचन ने इसके बारे में बोला? Did a prophet speak about it? क्या एक नबी ने इसके विषय में बोला? Are you interested to know? क्या तुम्हारी दिलचस्पी इसको जानने में? What would he tell the believers today? आज विश्वासियों से वो क्या कहेगा? Oh fools अरे बेवकूफों and slow of heart. और हृदय में मंदमतियों। In other words, दूसरे शब्दों में I've come to bring you back. मैं वापस आया हूं मैं आया हूं ताकि तुम्हें वापस ले जाऊं। Slow of heart. धीमे दिल वाले। In other words, living in a slow dimension. दूसरे शब्दों में धीमे गति पे चलने वाले अय्याम में रहने वालों। And I who am living in a fast one. और मैं जो कि स्वयं एक तेज गति में चलने वाले अय्याम में रहता हूं। I've come to your dimension. मैं आया हूं तुम्हारे अय्याम में। And to connect that dimension with your dimension. ताकि उस अय्याम को तुम्हारे अय्याम के साथ जोड़ूं। Please try to understand, brother.
to bring that dimension to your dimension. उस अय्याम को तुम्हारे अय्याम के पास लाने के लिए I have got only one method. मेरे पास केवल एक ही तरीका है। Go back to that word वापस उस वचन पे जाना and show you some prophecies. और तुम्हें जाकर कुछ नबूवतें दिखाना। When the prophecies start opening, तब नबूवतें खुलने लगी you start becoming faster. और इस नबूवतों के खुलने के माध्यम से आप तेज होने लगे। That was essential for them ये बात उनके लिए बहुत जरूरी थी for the next step. अगले चरण पे आने के लिए। When they invited him to their house जब उन्होंने आमंत्रित किया, इनवाइट किया उसको अपने घर में, and their eyes were open, और उनकी आंखें खुल गईं, and the minute their eyes were और open, जिस मिनट उनकी आंखें खुली, the sadness was gone. सारा हतोत्साहीपन चला गया। Did that happen there, brother? क्या ये वहां पे हुआ मेरे भाई? What had he come for? वो किस बात के लिए आए थे? To quicken their mind. उनके मनों को जिलाने के लिए। Oh my. आमीन। Search the scriptures. वचन में जाके खोजो। And he wants us to do it today. और वो चाहते हैं कि हम इस काम को करें। आज से एक नया होमवर्क है आप सबके लिए। यशाया, यर्मिया, हिजकेल, मीका, अवदिया, नहूम, आमोस, जोएल, हग्गे पूरा पढ़िए और अपनी बाइबल में रंगिए। क्या आपको मालूम है एक नबूवत यर्मिया में लिखी है, मेरे को मिली थी, जहां यह लिखा है मेरे लोग एक दूसरे के संदेश चुराते हैं। मुझे आयत मिली है, मैंने पढ़ी, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। आज के लोगों की एक समस्या यर्मिया में लिखा है कि मेरे लोग एक दूसरे के संदेश चुराते हैं, दूसरों से अपने नोट्स बनाते हैं और अपना करके प्रचार करते हैं। मैं तो इसे एक अपना काम समझता था। यर्मिया में तो एक आयत लिखी है और कहा यह है हमारे झूठे नबियों का गुनाह है, कुछ नहीं, लेकिन 2 मिनट में प्रतीत होते हैं कि बहुत बड़े हैं, कि इधर से लिया, चुरा के मिला के बना दिया। यानी खुदावन वहां यर्मिया में यह बता रहे हैं कि इनके पास अपना रेवलेशन नहीं है। देखो ब्रदर और सिस्टर, जब आप वचन पढ़ोगे तब आपको कोई चीजें समझ में आएंगी। आमीन। एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, पुलपिट पे आओ, बहुत आसान है, लेकिन खुदा के साथ कुछ घंटे गुजारो कि वो वचन खोले और कुछ समझाए। ये एक फर्क बात है। ये बात मुझे ब्रदर सो एंड सो से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, आमीन, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। धन्य है तू शायमन बरजोना, कि मांस और लहू ने नहीं, स्वर्ग पिता ने। ये हैं बाइबल की आयतें। अब जब आप यर्मिया पढ़े तो यहां एक गुनाह समझाया। खुदावन रुष्ट हैं अपने लोगों के गुनाह से। मैंने आपको खाली अवगत कराना चाहा, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं, और अभी उनकी जब पूर्तिकरण की बात करें तो होली स्पिरिट वहां से लेके कुछ चीजें समझाएगा। अरे यार क्या मैसेज था। दूसरा बैठा है कहता यार ये तो मैंने ही प्रचार किया था, मेरी मीटिंग का मैसेज लिया और जाके वहां पेल दिया, और वहां लोग वाह व्हाट अ मैसेज, और दूसरे को हवा भी नहीं कि ये मैसेज कहां का था। किसी को मालूम नहीं कि उस मैसेज का ओरिजिन कहां है। हाँ जी। उनका लिया, वहां प्रचार कर दिया, वहां सैंडविच बिखेर के आ गए और अपने नाम की वाहवाही कमा गए। खुदावन कह रहे हैं मैं अपने लोगों से रुष्ट हूं इन कारणवश। एक कारण उसमें से यह भी है लोगों के संदेश चुराना। इसे संदेश को चुराना कहते हैं, दूसरों से लेके चुराना। आपकी समझ में आ रही है? पढ़िए, यर्मिया में सब लिखा है। इसलिए ये तो खाली मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आप सोच में पड़ गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसी एक नहीं निरी बातें हैं। अभी हमने पिछले ट्यूसडे को पढ़ा था, मेरी वेदी को आंसुओं से भर रखा है, कारण पत्नी के विरोध में कुछ गलत काम किया। लिखा नहीं लिखा? ऐसी एक नहीं ब्रदर, आपको कितनी बातें मिलेंगी जो वचन में लिखी हैं। मेरे लोग ऊंघते हैं, ये लाइनें लिखी हैं बाइबल में। मेरे लोग ऊंघते हैं, उनकी आंखें अंधी हैं।
यशरून ने जब बहुत खाया तो उसकी आंखों पे चर्बी समा गई और वो भूल गया कि मैं उसे कैसे निकाल के लाया था। मैं कुछ कुछ आयतें इधर उधर की आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़िए, आपको मिलेगा। देन यू विल अंडरस्टैंड कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, और अगर मैं और आप दुल्हन हैं तो हमारे लिए क्या लिखा है। अरे ब्रदर, दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट। ये खूबसूरत हिस्सा है। सर्च द स्क्रिप्चर्स, वचन में जाके खोजो। जब कभी कोई घटना हो वचन में घुस जाओ। ये घटना अगर खुदावन की ओर से है तो कहां लिखी है, इसकी पहचान कहां से है, और अगर पहचान मिल जाए तो फिर अगली भी बात समझ में आएगी। हाँ जी, कि ये घटना इसलिए हुई कि अब अगली चीज अब ये होने वाली है। आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हैं? ओ चर्च, हालेलुया। At this time I'll just stop for a minute. इस जगह में 1 मिनट के लिए रुकूंगा। Turn with me to the book of Zechariah. मेरे साथ निकालें जकरिया की किताब। This message is such. ये संदेश ही ऐसा है। Amen. आमीन। Zechariah 9. जकरिया 9। The burden of the word of the Lord in the land of Hadrach and Damascus shall be the rest thereof, when the eyes of men as of all the tribes of Israel shall be toward the Lord. हद्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इज़राइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। He is now gathering Israel. अब वो इज़राइल को इकट्ठा कर रहा है। Few verses later, कुछ आयतों के बाद, rejoice greatly, O daughter of Zion. Verse 9. 9वीं आयत में लिखा है, सय्योन बहुत ही मगन हो, सय्योन की Shout, बेटियों, O daughter of Jerusalem. ओ ए यरूशलेम की बेटियों जय जयकार करो। आप सोचते हैं आयत पूरी हो चुकी? कितनों को मालूम है कि वचन की कई आयतें ऐसी हैं जो एक बार नहीं कई बार पूरी होती हैं? कंपाउंड मीनिंग, यस। And that same Zechariah writing in chapter 14 how he'll stand on the Mount of Olives. और कैसे वही जकरिया 14वें अध्याय में लिख रहा है कैसे वो जैतून पहाड़ पे खड़े होंगे। And it shall be light in the evening time. और शाम के समय उजियाला होगा। If the Hadrach message was identified, अगर हद्राक वाला संदेश पहचाना गया, Zechariah 9 was identified. जकरिया 9 पहचाना गया। And if Zechariah 9 is identified, और अगर जकरिया 9 पहचाना गया, what's the next verse? अगली आयत क्या है? Rejoice, O daughter of Zion. हे सय्योन की बेटियों आनंदित हो, Thy king cometh. तेरा राजा आता है। And it shall be light in the evening time. और शाम के समय उजियाला होगा। The light is already there. रोशनी पहले से है। But now what? लेकिन अब क्या? An earthquake judgment. एक भूचाली न्याय And the rapture of the bride. और दुल्हन का यहां से उठाया जाना, रैप्चर। So you see, तो आप देखिए, going into prophecies is the work of the Holy Ghost. नबूवतों में जाना ये पवित्र आत्मा का काम है। And from there he picks up things. और वहां से वो चीजों को लेते हैं। If you want revival in your life. अगर आप चाहते कि आपके जीवनों में Do बेदारी you आए, want it? क्या आप चाहते हैं? कई बार घड़ी धीमी पड़ने लगती है तो you need a little charging up. और जब घड़ी धीमी होती है तब आपको चार्ज करना पड़ता है। How to charge up? कैसे चार्ज करना? करें, Open your Bibles अपनी बाइबलें निकालें and start reading some prophecies और कुछ नबूवतों को पढ़ने लगें and read the message, of course. और बेशक संदेश भी पढ़ें। That mighty angel will pick it up वो महान शक्तिशाली दूत उसे उठाएगा and quicken it to your mind. और आपके मन के लिए जागृत कर देगा। Then you'll start seeing what is happening. तब आपको दिखने लगा क्या हो Oh, रहा है। church, if I can make you understand some things, ओ कलीसिया, अगर मैं आपको कुछ बात समझा पाऊं। should make it plain today. Now see, अब देखिए, that land वो जमीन and the foundation was laid, जमीन और उसकी नींव रखी जा चुकी, but it was stopped. लेकिन रोक दिया गया। And how we bought it under Haggai. और कैसे हग्गे के नीचे हमने उसको खरीदा। Is that right? क्या बात सही है? And we put those verses. और हमने उन आयतों को वहां रखा। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनिए। Then came the next verse. फिर आती है अगली आयत। Who art thou, O great mountain? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? Before Zerubbabel thou shalt become a plain. जरूबाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा। It took 20 years to build that temple. 20 साल लगे उस मंदिर को बनाने में। But that prophecy came लेकिन वो नबूवत आई when the temple was being built. जब मंदिर बनाया गया। I'll shake the heavens and the earth. मैं आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा। And I shall fill this house with glory. और मैं इस घर को महिमा से भर दूंगा। Now see how those prophecies were tied. अब देखिए ये तमाम नबूवतें कैसे जुड़ी थी। Should we forget that? क्या हम इसको भूल जाएं? No, brother. नहीं मेरे भाई। Something is tied to it. हाँ जी, कुछ जुड़ा है उसके साथ।
There are some things tied to those prophecies. कुछ जुड़ा है उन नबूवतों के साथ। Something is tied with that Zerubbabel message. उस जरूबाबिल के संदेश के साथ कुछ जुड़ा है। Zerubbabel coming again. जरूबाबिल का वापस आना दोबारा से। His hands have laid the foundation. उसके हाथ में नींव को रखा है। And his hand shall finish it. और उसका हाथ ही इसको पूरा करेगा। When Zerubbabel in our age preached the seven seals, जब जरूबाबिल ने हमारे युग में 7 मोहरों का संदेश दिया, the 7 voices, 7 आवाजें, he was bringing the capstone. वो चोटी के पत्थर को ला रहे थे। But listen carefully. लेकिन ध्यान से सुनिए, God stopped him. खुदा ने उनको रोका। But now, लेकिन अब we are coming to a time हम एक समय पे आ रहे हैं when he's going to shake the heavens and the earth. जब वो आकाश और पृथ्वी को हिलाएंगे। In that day, उस दिन में I'll make you my signet. मैं तुझे अपनी मोहर बना दूंगा। Zerubbabel being made a seal. आप पाएंगे कि जरूबाबिल वो मोहर बन गया। This message will become a seal. ये संदेश मोहर बन जाएगा। It's a prophecy for now. ये आज के लिए नबूवत है। Are we aware of that? क्या हम इस बात के लिए जगे में हैं? Notice, ध्यान दीजिए, he began with Moses' prophecy. उसने मूसा की नबूवत से चालू किया। What would he begin with today? आज वो किस बात पे चालू करेंगे? Would he begin with somebody's prophecy? क्या किसी की नबूवत से चालू करेंगे? बातचीत जब चालू करेंगे तो क्या कुछ नबूवतों पे जाएंगे? Amen, amen, आज का भी क्या कोई मूसा था? amen। Would he go to a third Exodus message? क्या वो तीसरी निकासी वाले संदेश में Would he जाएंगे? go to Why Christ Speak? क्या वो नहीं जाएंगे उस संदेश में दोहाई क्यों देता है बोल? Follow that for a minute, please. इसके साथ चलने की कोशिश करिए 1 मिनट। क्योंकि मैं अब ये कुछ दिखाने जा रहा हूं आपके सामने जो हमारे बीच में हो रहा था। Amen, amen, amen। He began with Moses' prophecy. उन्होंने चालू किया मूसा की नबूवत के The साथ। Bible said he beginning with Moses and all of the prophets. बाइबल लिखा है मूसा से उसने तमाम नबियों को लिया, But he started with Moses. लेकिन चालू किया मूसा के साथ। A prophet said Moses, का एक नबी मूसा, the Lord your God shall raise up among you people among the people. तो प्रभु खुदावन तुम्हारे बीच में एक मनुष्य को खड़ा, एक तुम्हारे बीच में खड़ा करेगा। The Lord God shall raise up a prophet. खुदावन एक नबी को उठाएगा तुम्हारे बीच में से। Now he might have said, अब उसने हो सकता है कहा हो, Cleopas and your friend here. क्लियोपास और तुम्हारा मित्र जो यहाँ है। कह रहा हो क्लियोपास और आए मित्र सुन ले। हाँ जी। Did not Moses say क्या मूसा ने ये नहीं कहा था that in the days the Lord would raise up a prophet? Lord God would raise up a prophet. कि इन दिनों में प्रभु खुदावन एक नबी को उठाएंगे, And this man that they crucified, और इस आदमी को जिसको उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया, did he meet that qualification? क्या उसने इस काम को पूरा किया? Meet that qualification. उसने उस विशेषता को किया। Now Moses prophesied this, अब मूसा ने ये नबूवत की, and now you haven't had a prophet for hundreds and hundreds of years. और कई सैकड़ों साल से तुम्हारे बीच में कोई नबी था नहीं, And here this man raised up. और यहाँ पर ये आदमी उठा। And what was this man's forerunner, did you say? और क्या आपने देखा इस आदमी का पेशरो कौन था? Get it? क्या बात समझ में And आई? all the prophets said about him, और तमाम बातें जो नबियों ने इसके विषय में बोली थी, for his age, उसके युग के लिए he spoke to them. उसने उनके सामने बोली। It sure would have been interested to listen at him. और ये बहुत ही बेशक बहुत ही दिलचस्पी वाली बात होगी उसको सुनना। Wouldn't you like to heard him? क्या आप नहीं चाहेंगे उसको सुनना? I like to heard him to hear him. मैं उसकी सुनना चाहूंगा। What he said that the prophet said about himself. कि नबियों ने उसके विषय में क्या क्या बोला मैं वो सुनना चाहूंगा। But he never said it was him. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बता तो रहे थे कि नबियों ने उसके विषय में क्या कहा था, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो शख्स जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो मैं ही हूं। I'll repeat it. मैं दोहराता हूं, He was not telling directly, I am that person. वो सीधे सीधे उनसे ये नहीं कह रहा था कि मैं ही वो शख्सियत हूं। He was trying to point himself in the scriptures. वो अपने आप को संकेत करना चाह रहा था उस वचन में। Oh church. ओ कलीसिया, He just showed them by prophecy. केवल नबूवतों को दिखाया He just उसने। said the prophet said this would happen. See. उसने बताया ठीक, केवल इतना कहा उसने, नबी ने ये बोला था। Let's go back ये होगा। a few minutes. आइए 1 मिनट पीछे चले And now let's listen to the words quoted from himself. और आइए उन कथित वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आइए उनको देखते हैं। Watch here. यहाँ देखिए, The word itself quoting the word of himself. वचन स्वयं जा करके अपने विषय में वचन का हवाला दे रहा है। The word itself quoting the word of himself. वचन स्वयं जा करके अपने विषय में वचन का हवाला दे रहा है। Not tell them that he was that, ये नहीं बता रहा कि वो वचन वो है, but just let the word speak for itself. लेकिन क्या कर रहे हैं कि वचन को अपने विषय में बोलने दे रहे हैं। Then they know who he was. तब वो समझेंगे वो है कौन। The letter of the word, वचन में लिखित वचन, quoting the word and the word in flesh. और लिखित वचन
हवाला दे रहा है उस वचन को जो शरीर में खड़ा है। The word in flesh quoting the word of the letter. जो वचन जो शरीर में है वो कोट करके दिखा रहा है वचन जो लिखा हुआ है। Being fully identified with himself. और पूर्णतया से उसमें उसकी पहचान हुई है। Look here, now let's listen to him quote. अब ध्यान से सुनिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। Now we know that they were all briefed of the late happenings. और वो सब जानते थे कि इन दिनों में जो हालत हुई थी वो क्या क्या थी। That is of the crucifixion. और वो बात थी, वो घटना थी क्रूस पे चढ़ाए जाने की। And of the story of the resurrection. और पुनरुत्थान की कहानी जो अभी अभी हुई। The tomb as we just read. वो कब्र जो अभी हमने पढ़ा। Now he goes straight to the word of prophecy. अब सीधे सीधे वो भविष्यवाणी के शब्द पे जाता है। About himself. अपने विषय में। Now let's just think that he said this. अब आइए देख सोचते हैं कि उसने क्या कहा। He said a lot more than this. उसने इससे बहुत ज्यादा कहा। जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे तो कहीं ज्यादा बताया, लेकिन मैं कुछ कोशिश करूंगा लेने की जो उसने उनको क्या बताया। But watch. ध्यान से देखिए। Let's say hear him say. आइए देखते वो उनसे कह रहा है। Turn over to Zechariah 11:12. कि अपने आप निकालो बाइबल खोल करके जकरिया 11:12। He's telling those उन disciples. चेलों से कह रहे हैं। अरे वो बाइबल खुलवा रहा है। हाँ जी, बाइबल की आयतें पढ़वा रहा है, आप करवा रहे हैं ये काम। Turn over to Zechariah 11:12. He's telling them. और यीशु मसीह उन दो चेलों से क्या कह रहे हैं कि निकालो अपनी बाइबल में जकरिया 11वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। And wasn't the Messiah to be sold? और क्या जरूरी था कि मसीहा बेचा जाए? According to the prophet. ठीक जैसे नबी ने कहा था। For 30 pieces of silver. चांदी के 3 टुकड़ों के लिए। You just said that this. आप कह रहा है क्लियोपास से कि तुमने अभी भी बताया कि ये 30 चांदी के टुकड़ों में बेचा गया। तुमने आयत पढ़ी है क्या? जकरिया 11:12 में ये लिखा है कि वो 30 चांदी के टुकड़ों में बेचा जाएगा। हैं? ये भी लिखा था? ये लिखा था क्या? बोले तुमने ही अभी बोला, मैं तुमसे जब पूछा तो तुमने ही बताया कि अभी ये जो घटना है उसमें से एक घटना ऐसे हुई। बोले जकरिया 11:12 में ये लिखा था। You getting them scriptures? क्या तुम्हें वो आयतें मिल रही हैं? Zechariah 11:12. जकरिया 11:12। And then he said, did you notice what David said in the Psalms? और तब उसने कहा क्या तुम्हें ध्यान दिया कि दाऊद ने जबूरों में क्या कहा? Psalm 41:9. जबूर 41 आयत। He was be betrayed by his friends. कि अपने दोस्तों के द्वारा वो पकड़वाया जाएगा। And then again in Zechariah 13:7. और फिर दोबारा जकरिया 13:7 में He was forsaken by his disciples. अपने ही चेलों के द्वारा वो तुच्छ गिना गया। And in Psalms 35:11. और फिर जबूर 35:11 में accused by false witnesses. झूठी गवाहियों के द्वारा उस पे तोहमत लगी। You just said he was. आपने बताया उस पे तोहमत लगी। यानी ब्रदर इतनी आयतें पढ़नी पड़ेंगी। सब पढ़नी पड़ेंगी ब्रदर। इतनी आयतों को पढ़ने का आपके पास टाइम है? मैं आपको जगाने आया हूं। आपको याद होगा 1-2 संडे पहले मैंने बोला था, यहां मीटिंग जब पहले होती थी तो ऐसे बोला 53-5 13-10 3-10 उंगलियां लगी हैं। यही है आज, इसी फ्रीक्वेंसी पे आना है। 53-5 23-3 13-10। आपकी कुछ समझ में आ रही है? क्या आप हैं यहां पे? क्लियोपास और उसका मित्र कहेगा आधी आयतें तो हमने पढ़ी भी नहीं आज का। अरे जबूर 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 तो जबूर है। उन्होंने कहा जबूर तो जबूर है, लेकिन 41:9 पढ़ा? बोले जबूर पढ़े हो तो 41:9 बोले। हम तो अपने कामों से फुर्सत नहीं। वो बोले बेटा रैप्चर को समझना है, उड़ना है और इस मौसम को समझना है। 41:9 13 11 15 3 पे आना पड़ेगा। कुछ बातें समझ में आ रही है आपके? इसको भूल मत जाना। मैंने क्या बोला? भूल मत जाइएगा ब्रदर, क्योंकि यहां कोई और है इस वक्त जो आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। सुन लिया, आत्मा से भर गए, लेकिन जब तक घर पहुंचे वहीं पर हैं। 2-3 चीजें घर में घटती हैं, फिर अचानक बिजी हो जाते हैं, फिर वो तमाम बातें जो चर्च में बोली गई वो दिमाग से निकल गई। 41:3 53:12 ये क्या? घूमना चाहिए। अब वो कह रहे हैं ही वॉज बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड्स।
अपने दोस्तों के द्वारा पकड़वाया गया। And then in Zechariah 13:7, और फिर जकरिया 13:7 में he was forsaken by his disciples. अपने चेलों के द्वारा वो तुच्छ गिना गया। And Psalm 35:11, और जबूर 35:11 में accused by false witnesses. झूठी गवाहियों के द्वारा उस पे तोहमत लगी। बोले सब तुम ही बता रहे हो, you just said he was. तुमने अभी बताया कि झूठे गवाहों से वो पकड़वाया गया। मैं तुम्हें आयत दिखा रहा हूं झूठे गवाह वाली, तुम बोलते जाओ और मैं उसकी आयतें दिखाता जाता हूं। हालेलुया। Isaiah 53:7, यशायाह 53:7 he was dumb before his accusers. अपने दोष लगाने वालों के सामने वो चुपचाप खड़ा रहा। Isaiah 56, यशायाह 50:6 they scourged him. उसका मजाक मखौल उड़ाया। The prophet said, नबी ने कहा। Psalm 22, जबूर 22 he was to cry on the cross. उसको जोर से चिल्लाना था क्रूस पे। मैं तो ये कहूंगा भाई ब्रैनम, आपने इतनी आयतें कहां से लिखी? मैं भी एक सोच रहा था ब्रदर। अभी तो मैं आपको एक केवल ऊपरी ऊपरी दिखा रहा हूं। नबी एक मैसेज प्रचार कर रहे हैं जो एक सब्जेक्ट है, बोलते मेरे पास इतनी एक छोटी किताब है केवल आयतों की, मैं केवल उसमें से कुछ ही दिखा पाऊंगा आपको केवल एक विषय समझाने के लिए, लेकिन आयतें मेरे पास इतनी लिखी हैं। इतनी किताब भरने में आयतें कितनी लिखी होंगी? शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। आज दूसरे मजहब के लोगों से बात करो, कईयों से, अपनी किताब पे बड़ा गर्व मार के और सीना तान के अपनी किताबें बांट रहे हैं आजकल सड़कों पे, चौराहों पे, और उन किताबों पे दम भरते हैं कि हमारी ओरिजिनल किताब है। और एक मसीही पैथेटिक, एक मसीह को उसकी बाइबल नहीं आती, मसीह को यही नहीं मालूम कि उसकी बाइबल में क्या लिखा है। आपकी समझ मारी है? और आज अगर वो प्रभु यीशु मसीह अपने ही चेलों के पास आएंगे, क्या बोलेंगे? 53:7, 15:3, एक मीटिंग जरा ऐसे निकाल देते हैं 6 घंटे की, क्योंकि 6 घंटे की मीटिंग इसी पे चली। 53:5, 35:3, 13:7, 41:9, 11:12, 35:11, 53:7, यही चला पूरे 6 घंटा। और अगर यहां चल गया सिर में दर्द हो जाएगा, कुछ लोग उठ के चले जाएंगे। ये तो कुछ हिस्सा है ब्रदर। नबी बोल रहे हैं ये 6 घंटे का मैसेज था, और वो हर आयत केवल इस बात पे दिखा रहे हैं, तुम नहीं बोला, मैं तो कुछ मालूम ही नहीं मुझे। जैसा तुमने भी कहा मैं एक अजनबी हूं, जिसे कुछ आइडिया ही नहीं कि यहां क्या हुआ, और मैं तुमसे ही पूछ रहा था कि यहां क्या हुआ, तो तुम ही बता रहे हो। वैसे जो बता रहे हो उसकी एक आयत है बाइबल में, ये हुआ बोलते ये लिखा है, ये हुआ ये लिखा है, ट्रंप इलेक्ट हुआ ये आयत लिखी है, प्यूटन ने यूक्रेन पे चढ़ाई करी ये आयत लिखी है, चीन ने ये किया लिखा है, कोविड आया ये लिखा है? और उसके बाद अब ये होना है ये भी लिखा है। क्या बोलेंगे ब्रदर? 41:7, 53:3, ये वो, ये है मैसेज। किनके साथ? अपने चेलों के साथ। आप लोग हैं मेरे साथ? मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? ओह प्रेज गॉड, आज से मैं फैसला लेता हूं। फैसला ले लीजिए जल्दी, क्योंकि अगर वचन नहीं जाना, क्या कहते हो कि मैं क्रिश्चियन हूं, और क्रिश्चियन को अपनी बाइबल नहीं आती? क्रिश्चियन को उसकी बाइबल भी नहीं आती। मैं एक मसीह हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। क्या पढ़ी बाइबल आपने? वो कहता है सर्च द स्क्रिप्चर्स। हाउ मच डिड यू सर्च द स्क्रिप्चर्स? वो कह रहा है कि वचन में जाके खोजो। आपने कितना खोजा? आप सोते हैं, मैं आपके मुंह पे बोलूं, आप ऊँघते हैं, आपका दिल क्विकन नहीं है, आपके मन जागृत नहीं है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आपको आपकी बाइबल नहीं आती। हर संडे स्कूल के टेस्ट में जब कुछ आयतें रखी जाती हैं, कुछ जवाब देते हैं, कुछ नहीं देते। मैं तो अचरज से भर गया कि मैंने सबसे आसान पेपर बनाया था इस साल संडे स्कूल का, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। भाई टाइटस से मुझे ज्ञात हुआ, कितने बच्चे थे? 60। जबूर 1 की आयत है,
एंड ही शैल बी लाइक अ ट्री, यही था कि वो उस पेड़ की ना वृक्ष की मानंद होगा जो अपने बहती नालियों की तरह लगा, जो अपना फल लाएगा। ये आयत से रखी गई थी, है जो अपनी ऋतु में फलता है। संडे स्कूल के कई बच्चों को ये आयत नहीं मालूम। यह है कंडीशन यहां के कई लोगों की, उन्हें जबूर 1 भी नहीं आता। बच्चों को जिस आयत को हमने बचपन में इतने जब छोटे थे रट रखा था, जबूर 1 मुंह पे था, जबूर 23, जबूर 91, 3 ऐसे जबूर थे जो तो मुंह पे हमेशा रहते थे। और हमने कोशिश करके क्वेश्चन पेपर ऐसे जबूर से बनाया जिसकी आयतें सबको मालूम हो। मैं चाह रहा था इस बार नीट जैसा रिजल्ट हो, 60 में से कम 30 के आए 100/100, ताकि भाई प्रेजेंट देते देते थक जाए। लेकिन भाई तो बड़े आसानी से प्रेजेंट देगा इस बार, क्योंकि टॉपर के नाम पे एक ही आया, उसके भी 60 नंबर आए आसान से पेपर पे। और वो आसान सा पेपर एक रिफ्लेक्शन ये बताता है आपको बाइबल कितनी मालूम। फिर जब बच्चों का यह हाल, तो भी बड़ों का भी यही हाल है। आज मसीह आएंगे और बात करेंगे। फिर दिमाग जब गुम होता है, तब आ गई एक शादी, तब आ गया एक बर्थडे, तब आ गया कुछ और गुम दिमाग में अपने फैसले ले बैठते हैं, क्योंकि यह नहीं मालूम नबी ने इसके लिए क्या बोला, इस चीज के लिए क्या है। प्यारे भाई बहन, ऐसे अंधेपन में कब तक जियोगे? आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने कहा कि हमें एक बीरिया की कलीसिया बनना है। अपने आप को आज की तारीख के बाद से थोड़ा सा चेतन करें और इस फ्रीक्वेंसी पे आए। 53.5, 43.3, 41.9, ये मुंह पे हो आपके। जिनके होगा वो जाएंगे, जिनके नहीं होगा सलाम साहब। तुमने सुना उसने क्रूस पे क्या बोला? आए बाप आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है? अब वो कोट कर रहा है उनके सामने साम 22, प्रभु कोट कर रहे हैं जबूर 22। He was to cry on the cross। उसे तो क्रूस पे ये बोलना था। अरे हमने तो सोचा कि वो दर्द में करहा के, हम तो रो रहे थे जब वो चिल्ला रहा था, आए बाप मेरे खुदा मैं खुदा तूने क्यों छोड़ दिया। उसने कहा उसने इसलिए बोला कि एक नबी कह चुका था कि वो ये बोलेगा। आमीन। Did he do that? क्या उसने ये काम किया? Day before yesterday afternoon, परसों दोपहर को। Psalm 22 again 18, जबूर 22 दोबारा से, उसकी 18वीं आयत। His garments was parted among them। उसके वस्त्र उनके बीच में बांटे गए। Did they do that? क्या उन्होंने ये काम किया? And Psalm 22 7-8, और जबूर 22 7 से 8, mocked by his enemies the church। अपने ही दुश्मनों के द्वारा जो कि कलीसिया है उसका मखौल उड़ाया गया। Psalm 22 again, जबूर 22 दोबारा। there was not a bone in his body to be broke, कोई भी हड्डी उसके जिस्म में नहीं थी जो जिसको तोड़ पाए वो। but they pierced my hands and my feet। लेकिन उन्होंने मेरे हाथ और पैर को छेदा। He said holding his hands behind him, no doubt। और अपने हाथ उसने ऐसे रखे हुए थे, मना वो थे देख लेते, उसने हाथ ऐसे रखे हुए थे और ऐसे करके बात कर रहा है उनसे। Oh, see the loving Lord। देखिए कितने प्यारे खुदावन हैं। Holding his hands behind him, no doubt at that time, अपने हाथ पीछे छिपा रखे जब उनसे बातचीत कर रहा उस समय। Isaiah 53:12, यशायाह 53:12 said he would die between malefactors। उसने बताया दो चोरों के बीच में वो लटकाया जाएगा। Isaiah 53:9, यशायाह 53:9 said he was buried with the rich। कि वो अमीरों के साथ गाड़ा गया। Psalm 16:10, जबूर 16:10 I will not leave his soul in hell, neither will I suffer my holy one to see corruption। कि मैं उसके प्राण को नरक में नहीं छोड़ूंगा, ना ही अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा। And was not Malachi 3 the forerunner of this man? और क्या मलाकी 3 इस आदमी का पेशवा नहीं था? Oh, I'd like to have heard him quote that। मैं चाहता था कि मैं उसको सुनूं इस बात को बोलते हुए। Look at the prophecies। ध्यान से देखिए नबूवतों को। Notice in all the types he might have went through। फिर वो तस्वीरों में गया होगा। Then he must have gone to the types। फिर वो तस्वीरों में गया। About Isaac in Genesis 22। इसहाक को लेकर के जो कि उत्पत्ति 22 में हुआ। How God foreshadowed Isaac।
कैसे खुदावन ने इसाक से पूर्व छाया बनाई, how Father Abraham took his own son, कैसे बाप इब्राहिम ने अपने ही बेटे को लिया packing the wood up the hill, और जो लकड़ी को पीछे लाद करके पहाड़ पे चढ़ा and offered up his own son, और अपने ही बेटे को चढ़ा दिया, चढ़ाने की कोशिश करी, you know. It was now beginning to soak into them. इन तमाम नबूवतों को सुनने के बाद, इन तमाम आयतों की पूर्तिकरण को देखने के बाद अब ये बात उनके अंदर घुसने लगी। खुदा को मालूम है कैसे घुसाना है। He had done told them they were fools उसने बता दिया कि तुम बेवकूफ हो, for not looking at the prophecy for that day, क्योंकि तुमने आज के दिन की नबूवतों को नहीं देखा। and now it began to soak in, अब ये अंदर बैठने लगी बात, begin to see the fulfilling of all this that had taken place. और ये सब कुछ जो Just a minute, मैं पूरी लाइन पढ़ लूं. And now it began to soak in, begin to see the fulfilling of all this that had taken place in the last few days, in the last 2 or 3 years. और नबी क्या कह रहे हैं कि ये चीज उनके अंदर बैठने लगी और ये बात उन्होंने देखा कैसे पूरी हो रही है, वो घटना पिछले कुछ दिनों की और कुछ नबी कह रहे 2-3 साल वाली जो बातें हैं, पिछले 2-3 साल में जो हुआ उन्हें अब दिखने लगा। आमेन। कैसे वाई क्राइस्ट स्पीक का मैसेज आया, कैसे मूसा आया, कैसे नबूवतें आई, कैसे मरकुस 11 आया। How should I say to thy church? मैं चर्च से क्यों कैसे कहूं ये बात? How people can be so blind that they don't see it. कैसे लोग अंधे हो सकते हैं कि इन बातों को देख ना सकें? It only takes the grace of God to make their eyes open. केवल खुदावन के अनुग्रह की जरूरत है ताकि उनकी आंखें खुल जाएं। But somehow the elect saw it. लेकिन किसी रीति से चुने वो ने देख लिया। It was then that they knew that their crucified friend Jesus had fulfilled every word of this. ये था वो समय जब उनको समझ में आया कि उनका जो दोस्त जो क्रूस पे चढ़ाया गया उसने तमाम वचन की नबूवतों को और आयतों को पूरा किया। Then they started understanding these things. तब वो इन बातों को समझने लगे। Oh, it was then that they know that that man truly was that Messiah. ये था समय जब उनको समझ में आया कि पक्की तौर से बेशक यही है वो मसीहा था, That he should raise from the dead. जो कि जिसको कि मृतकों से जी उठना था। The grave couldn't hold him. कब्र उसको रोक नहीं पाई। सही बात है, सही बात है। अब ये कहना शुरू कर दिया, सही बात है। तो ये जो बहनें कह रही थी सही कह रही थी, कब्रें तो सच में खुलनी चाहिए, फिर तो आज उसकी कब्र खुली होगी। अभी फिर भी नहीं मालूम कि सामने खड़े हैं। I will not suffer my holy one to see मैं corruption. अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं दूंगा। That's not one word of prophecy can ever fail. कोई भी नबूवत का एक भी वचन कभी टल नहीं सकता। And he did raise. और वो जी उठा। Then that messengers down at the tomb this morning फिर वो संदेशवाहक जो कि उस कब्र पे था आज सुबह, was right. He's risen from the dead. उसने कहा कि वो जी उठा है, He's alive. वो जी उठा है, He's that Messiah. वो है वो मसीहा। Why? Don't fail it. इस बात में चूकना नहीं। His action, his ministry, उसके काम, उसकी सेवकाई and everything he's done और हर एक काम जो उसने किया has been vindicated. वो पुष्टिकृत हुआ है। Exactly the words that the prophet said would take place for this day. सटीकतापूर्ण उन वचनों को लेकर के जो नबियों ने बोला आज के दिन वो घटी। I'm jumping to para 125. 125 अनुच्छेद में जा रहा Now हूं। here's another thing they had done. एक और काम उन्होंने किया। You know, they had heard a 6-hour sermon on prophecy being vindicated. उन्होंने 6 घंटे का संदेश सुना नबूवतों को लेकर के जो कि पुष्टिकृत हुए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 7 मील की दूरी है, 7 मील चलने में कितना टाइम लगता है? मैं क्यों चल चुका हूं 7 मील। 7 मील यानी किलोमीटर बना देते हैं, 1.8 कर देते हैं, 13 किलोमीटर लगा लीजिए। कितना टाइम लगेगा? 1.5-2 घंटा बस। 2 घंटा लगेगा या 6 घंटा लगा? मैं सवाल ये पूछता हूं, बाइबल में लिखा है 6 घंटा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बाइबल में लिखा है 6 घंटे? नहीं, बाइबल में तो 6 घंटे नहीं लिखे। आपको कैसे मालूम भाई ब्रैनम की 6 घंटे लगे थे? ओह माय। यू सी चर्च, आप देखिए चर्च, जिसने बातें करी थी 6 घंटा वो इनमें था। आमेन 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 आमेन। इसलिए वो बता रहा है कितना टाइम मैंने बात करी थी, कौन कौन सी आयत कोट करी थी, और ये तो केवल एक झांकी है बस। 53, 12 से 43 दिन की 10 आयतें जिसमें आप फ्लैट हो गए। 6 घंटा लगातार ये बोलते रहो, 53, 12, 50, 3, ये वो और 6 घंटा लगातार बोलो, खोपड़ी धुन जाएगी। ये था मैसेज 6 घंटे का। ओह माय गॉड। ताकि रौंद के वो जंग लगे नट खोल दिए जाएं। आमीन।
ऐसे रुंधवाने की जरूरत आज शाम आपको है। आप अभी सो रहे हैं, मानिए मेरी बात, आप अभी सो रहे हैं, आप एक सुप्त अवस्था में हैं, आपको जरूरत है इस मूव की। Amen. I need it, Lord. I need it. और हमारे खुदा वो जो अपने चुने हुए के पास यही लेके आएंगे। Amen. Amen. कुछ समझ में आ रही है आपके? Amen. आज की तारीख पे वो 53-5-41-9 से नॉट हटके से और आगे बढ़ के ये भी बोलेंगे। ऑन द विंग्स, पेज नंबर ये, पैराग्राफ ये, गॉड्स चोजन प्लेस ऑफ वर्शिप, पेज नंबर 1, पैराग्राफ ये मैसेज, पैराग्राफ ये मैसेज, ये पैराग्राफ, ये मैसेज, ये पैराग्राफ मुंह पे है। और जिन्होंने पढ़ा है वो कहेंगे हाँ हाँ हाँ, और यहीं से दिल जलने शुरू होंगे। Amen. ओ ब्रदर, ओ मेरे भाई, I'll jump further because time is going on. समय बीतता जा रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। Now it was getting along towards evening time. अब शाम हो चली थी। Para 126. 126 अनुच्छेद, And I'm now jumping to 127. 127 पे आ रहा हूं मैं। Last line. अंतिम लाइन। You know, they invited him. आप देखिए, उन्होंने यीशु मसीह को आमंत्रित किया। He was waiting for them to invite him. प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा था और देख रहा था कि वो उसको आमंत्रित करें। After that meeting on prophecies, उन नबूवतों की मीटिंग के बाद he was waiting to be invited. वो इंतजार कर रहा था कि वो इनवाइट किया जाए। That's what he's waiting tonight, आज रात्रि इसी चीज का वो इंतजार कर रहा है for you to invite him. कि आप उसे इनवाइट करें। Notice when those disciples invited him into their fellowship, ध्यान से देखिए, जब उन चेलों ने संगति के लिए उसको इनवाइट किया, around the table, मेज के आसपास, it was then ये था तब समय that he done something कि जब उसने कुछ किया, just like he did before his crucifixion, ठीक अपने क्रूस पे चढ़ने से पहले जो उसने किया था, and their eyes come open. और उनकी आंखें खुल गई। After 12 years, 12 साल के बाद again, दोबारा से, for the first time, पहली दफा a proper table was made in this church एक प्रॉपर टेबल इस चर्च में बनाई गई। यस यस, for communion. कम्युनियन के लिए, प्रभु भोज के लिए। Some brothers know what I'm saying. कुछ भाई जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। जब से इस चर्च में शिफ्ट हुए के बाद से अब तक पहली बार एक सही मेज मखसूस हुई कि प्रभु भोज की रोटी उस पे बने। हमें नहीं मालूम था। यह हुआ 12 साल के बाद। And after many years, और काफी सालों के बाद this pulpit, ये पुलपिट which was laying there जो वहां पड़ी हुई थी and had become like a storehouse, और जाकर के एक गोदाम सा बन चुका था, was brought back to its place वापस अपनी जगह पे लाई गई। just this last Sunday. ठीक इस पिछले संडे। What was it? क्या है ये? Inviting that Jesus. उस यीशु को आमंत्रित कर, Will you come and break the bread with us? क्या आप आ करके हमारे साथ रोटी को तोड़ेंगे? And all these years, और इन तमाम सालों में everyone has a testimony. हर एक के पास एक गवाही है Didn't our hearts burn when we heard him talking on the way? कि हमारे हृदय अंदर से जलते ना थे जब वो मार्ग में हमसे बातचीत करता था। But this time, लेकिन इस दफा, invited, इस बार अंदर आमंत्रित किया, come to the table मेज पे आ जाए प्रभु and break the bread. और please. रोटी को तोड़े। It is at that time, ये है वो समय, and I personally believe मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ, now is the time ये है वो समय when he did something before them. जब उसने उनके सामने कुछ किया।